On 17th December, I had a severe cardiac arrest. It was a great, and doctor told that, ma'am, you must immediately rush to the bigger hospital. From that time to coming back home till today, ma'am, not a slightest panic button was raised in my mind. It was calm and quiet, so much to believe, even onto the table when I was lying down. Doctor asked me, because it was local anesthesia, he asked, ma'am, are you okay? I said, sir, I'm to fine. Are you okay? And then everybody I was telling, I said, join this Shukrana group. Join this group that transforms the life, because I could feel that somebody holding my hand all through that way. And it was as if I've just gone to mall, did my shopping and came back. And it's so amazing, ma'am. It's so amazing. Like, I'm grateful for transformation of my life. Thank you so much, ma'am. Thank Wow. you. That was very beautiful sharing, Himaji. That was, and in such Thank a short time, you've been creating so many miracles, and that is all gratitude to your practice. Also, Thank you ma'am, for being an inspiration for others. yes, ma'am. Within December, I used to imagine to have a bigger house, and especially a bigger kitchen. That was always I wanted. I don't know how come, ma'am. I got a good chance to buy a bigger house. It was not mine affordability, but I have no idea how the universe worked. I have purchased that house, the big kitchen, and on Wow. 19th, I'm having the housewarming of it. What else Awesome. to ask? What else to ask? Thank you Yes, so much. Thank that's you. excellent news. Excellent. Thank you. Yes, Thank you thank so you much. so much. Thank you. Thanks. Your smile says it all. Thank you. Thank you. Can you please ask her about the assignments she did for the house and for that to Yes. experience the magics? Yes, ma'am. Good morning, Annie, ma'am. I have been doing focus gratitude for my health area, general gratitude for the health, especially for house. I have written a lot of things that I want this 3 BHK house, a big kitchen, and then I could imagine manifest that where I would be putting what kind of a see the wallpaper and how I am going to make the shelves, how my room would look. And I used to imagine, complete imagination, and it has completely given me same as I had imagined. It's like my imagination has come into the picture. That's it, ma'am. Yeah. So I know And how to do the wonders now. and you did the same for your doctorate too. You were writing Yes, gratitude for ma'am. that. Ma'am, I can, ma'am, one more thing I would suggest, though, any ma'am, Ashwin ma'am, you, everybody, Rajan sir says that what we ask, we get. You know, ma'am, what my health challenge I had got, I had manifested it. Knowingly, unknowingly, strongly, I manifested it. Because one of my friend, I wanted her to come to me. We are friends for 35 years. Every time I would say, यार मेरे जाने से पहले तो आएगी ना. I used to add this word मेरे जाने से पहले. Similarly, I used to do for my PhD. यार मैं चाहती हूँ जाने से पहले PhD डॉक्टर जरूर लग जाए. Can you believe, ma'am, in December, my friend came to my place after 35 years. I got my PhD degree and then I had this because I manifested it. मेरे जाने से पहले ये दो काम होने चाहिए. So universe did both the things and universe had gifted me this, which I wanted it. So I asked for it. So we have That's to be very careful with we have to words. be very careful about I learned the it, ma'am. negativity we manifest also. I Yes. learned it, ma'am. I learned it. Not to utter a word of negativity out of mouth. And that's what I've So been we learning always from here we Ashwin use ma'am, Annie if ma'am. you have noticed, we use the word breakdown. I understand, ma'am. Got it. Whenever you talk of health, don't mention I The- had this issue. Just Okay, always it's a say I had a breakdown. breakdown. Yes. Right. Thank you so much, Sarita ma'am. Thank you. Thank you. And I would always be indebted forever for this Shukrana group for transforming my life. And to yourself. And to Thank yourself. you. Always thank Of yourself for course, taking it I so do. seriously. I do. I do. Thank you so much once again. Have a wonderful day, everyone. Same to you.
जी राजेश जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे बिफोर वी गो इनटू पीक स्टेट? नहीं नहीं, बस मेरा शेयरिंग हो गया है बरोबर। ठीक ठीक, थैंक यू थैंक यू। So anybody else? We have a minute before we can go into peak state. Anybody, any other sharing? And we've had some beautiful sharings today, and if anyone would even like to share what you learned out of it, कि आज के sharing से आपने क्या सीखा? आज इतने beautiful sharings हुए. What was your takeaway from it? Like, I learned awareness, I learned belief. You know, ये बार बार भी बोलते जाओ ना. Every time someone shares, you are always inspired to do it again. Visualization, awareness. आई लर्न So, कि जब भी अपन मनी सर्कल चलाते हैं ना, तो अब जो शब्द है फरिश्ता, बहुत अच्छा लगा। फरिश्तों को yes, ये जो very आज nice. की लर्निंग में ये चीज सीखी। थैंक यू सो मच। सबसे बड़ी लर्निंग्स जो मिली हैं कि रियल मतलब कंसिस्टेंट जो प्रैक्टिस है ग्रेटिट्यूड की, राइटिंग की, अफर्मेशंस की, और वो बोलने की, मांगने की, दिल से बिलीव करके मांगने की, वो आज की सबसे बड़ी लर्निंग है। रियली जो एक एक्स्ट्रा पंच चाहिए था, आज की शेयरिंग से वो साफ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्र कि आज मैं यहाँ आपके साथ इस शेयरिंग्स को सुन रहा हूँ। बहुत अच्छा। और एक मैं छोटी सी शेयरिंग में भी एक कर लेते हैं सतपाल जी, because time for peak state. okay, no issue. Thank you very much. Thank you. Mental state instantly. Stand in a running position with a winning. Standing in the same position, just move your hands faster and faster. Okay, so let's start. 3, 2, 1, go. Come on, run faster, run faster. Yes, fast. Yes, come on, faster. Yes, fast. Come on, faster. Yes, come on. Yes, you can do it. Come on, faster. Yes. Keep running. Fast. Yes, come on, fast. Still faster. Yes, faster. Come on, go fast. Yes, fast. And now stop. Thank you. Yes, very nice. And you say to yourself, I am the winner. Yes, thank you. So now repeat the same practice with your left leg ahead and right leg with the ankle raised behind. We do the same thing again. Okay, so let's start. 3, 2, 1, go. Come on, run. Come on, run faster. Yes, faster. Still faster. Yes, come on. Yes, come on, fast. Yes, come on, fast. Come on. Yes. Run faster. Come on. Still faster. Yes. Come on, faster. Yes, come on, fast. You can do it. Come on. Run faster. Still faster. Yes. Run faster. You are going to win. Come on. You're the winner. I'm the winner. Come on. Faster. Yes. Come on. Yes. Okay. Wonderful. Just stop. Thank you. And now you say to yourself, yes, I am the winner. Great. Let's welcome yourself. Clap for yourself. Thank you, everyone. Thank you, Sarita ji. Thank you. Thank you, everyone, and good morning. Good morning, Rajesh. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Wow, early morning. Very Good good morning, morning. ma'am. Very good morning. Love you, Magical ma'am. morning. Good Beautiful morning. morning. Thank Morning, ma'am. Good morning. you. Good morning. Powerful morning, ma'am. Thank you very much to all the people who share whatever practices they are doing, whatever breakthroughs they are causing, be it a small, be it a big, but keep sharing. कई बार हमारी sharing में हमारी practices हम क्या कर रहे हैं, उससे भी दूसरे बंदे को काफी बहुत एक इंस्पिरेशन मिलती है, हेल्प मिलती है, कई बार रिमाइंडर मिल जाता है कि अच्छा हम भी ये कर सकते हैं. And this is how you can support each other in the journey of reaching your dreams.
और जितनी बार भी आपका कहा किसी और के काम आता है या किसी और को यूज में आ जाता है, यानी कि आपने किसी को रोशनी दी है, यानी उसको कुछ पॉजिटिविटी मिली है, तो आपकी तरफ पॉजिटिविटी, क्योंकि आपको भी तो आगे बढ़ना है ना, तो आप भी आगे बढ़ने के लिए जो आपकी तरफ पॉजिटिविटीज आने की स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, कई बार वो स्पीड अप हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अगर आपको भी लाइफ में आगे बढ़ना है तो औरों को बढ़ने में रोशनी देते रहो। So this is how the sharing is always good, like any kind of sharing, like आप किसी भी तरह की रोशनी, आपके पास अगर ज्ञान है तो ज्ञान की शेयरिंग कर लो, आपके पास अगर धन है धन की शेयरिंग कर लो, आपके पास अगर ब्लेसिंग्स हैं तो ब्लेसिंग्स की शेयरिंग कर लो, आपके पास किसी प्रैक्टिस की आपको लगता है कि हाँ इसको करने से मुझे फायदा हुआ है, उसकी शेयरिंग कर लो, बट इन अ वे वेयर रियली फर्स्ट you applied it to yourself and then you're sharing it with others because you got benefit out of it. So thank you very much for sharing the light out of your life with everyone. So thank you very much for beginning this beautiful day, beautiful weekend with a lot of light, a lot of lovely, wonderful breakthroughs you are causing. Thank you very much for being that person. Happy birthday to people who are born on this beautiful day, and happy anniversary to lovely couples out there. So thank you very much for everyone's support. एंड कई बार तो इतने सारे सपोर्ट होते हैं वॉलंटियर्स के, शेयरिंग पीपल के, पार्टिसिपेंट्स के, लाइक वाओ, वाओ मतलब कि लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, so many good people, so many angels around, so many people who are really supporting each other and sharing कि अपनी जिंदगी में हमारी कितनी चीजों में पॉजिटिविटी आ रही है, और ऐसे करते करते उम्मीद बनी रहती है, कईयों की उम्मीद बनी रहती है। सो थैंक यू फॉर कीपिंग योर होप्स अलाइव। जैसे किसी ने बोला कि शेयरिंग सुनकर, तो शेयरिंग से क्या होता है कि शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, शेयरिंग हर चीज में इंपॉर्टेंट पार्ट होता है परंतु जब आप अपने ब्रेक थ्रूज की शेयरिंग करते हो, अपनी रोशनी की, अपनी पॉजिटिविटी की, अपनी गुड फीलिंग्स की शेयरिंग्स करते हो लोगों के साथ, तो वो भी बढ़ बढ़ के वापस आती हैं और दूसरे जहां वो जारी होती हैं वहां पे भी रोशनी क्रिएट करती हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग। ओके, एंड इस ग्रुप में, इस कम्युनिटी में तो शेयरिंग करना वैसे भी आपको और उस कम्युनिटी के लिए बहुत जरूरी है, ताकि सबकी रोशनी बनती रहे, बढ़ती रहे, रोशनी बढ़ती रहे आगे की तरफ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर क्रिएटिंग दैट लाइट फॉर एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं सेहत की दुनिया में। एंड कमाल का चैप्टर है, कमाल का मतलब आई रिमेम्बर जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था, उसके बाद मेरी जिंदगी में इसको पढ़ के बहुत 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 कई तरह के फर्क आए थे उस टाइम पर। लाइक फर्स्ट टाइम, अभी तो मुझे याद नहीं कौन सा टाइम है ये वाला जब हम पढ़ रहे हैं, बट इट्स अ ब्रेक थ्रू चैप्टर, ब्रेक थ्रू बुक। सो लेट्स गो फॉरवर्ड इन आवर रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड इनसाइड योर बॉडी। आपके शरीर के अंदर की दुनिया, आपका शरीर अंदर से क्या दुनिया क्या चल रही है, जैसे आपको लगता है बाहर दुनिया है, हाँ, जो whatever is inside out it's there outside, जो अंदर है वो बाहर है, जो बाहर है वो अंदर है। तो आपकी बॉडी के अंदर की दुनिया में थोड़ी आगे चलते हैं, कुछ अगर क्वेश्चन होगा तो पूछ लेना, बिकॉज इट्स ऑल पर्सनल नाउ। आप कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, अकॉर्डिंगली ही ये बुक आपको अब अपीयर होनी शुरू होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। The world inside your body. There is an entire world inside you. To realize the power you have over your body, you need to know about this world because all of it is under your command. हाँ, तो जैसे कि जो भी आपकी बॉडी में चल रहा है, आपके अंदर जब बाहर की दुनिया है तो ऑब्वियसली आपका योर वर्ड इज क्रिएटिंग योर वर्ल्ड, पर अंदर भी आपकी ही कमांड चल रही है, शरीर के अंदर भी वट एवर यू आर सेइंग इट्स अपेयरिंग। कैसे पढ़ो? All the cells in your body have a role to play, and they work together for the sole purpose of giving you life. Some cells are the leaders of particular regions or organs, and they manage and direct all the working cells in their region, like your heart, brain, liver, kidneys, and lungs. अभी इस समय जैसे कि हम समझने के लिए समझो, जैसे कि घर में भी कई बार हमने अपने डिपार्टमेंट्स बांटे होते हैं ताकि घर की वर्किंग प्रॉपरली चले, पर अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हो, किसी फैक्ट्री में काम करते हो, या कहीं पे भी हाँ आउटर स्पेस, तो आप ज्यादा इजीली समझ पाओगे ये क्या कहना चाह रहे हैं।
तो जैसे सपोज आप जैसे सपोज हमारा पार्लर बिजनेस है, तो पार्लर बिजनेस में हमारा क्या है, हमारा मेन मोटिव क्या है कि पार्लर्स प्रॉफिटेबिलिटी में रहे, क्लाइंट्स को बहुत अच्छा कंफर्ट और अच्छी सर्विस मिले, हमारे स्टाफ भी खुश रहे, क्लाइंट्स भी खुश रहे, हमारे प्रॉफिट्स भी खुश रहे। तो ओवरऑल वर्केबिलिटी हमारी बिजनेस की लाइफ यही है ना, तो दो चार चीजें कंपोनेंट्स जो भी होती हैं, वैसे आपकी भी लाइफ है, उसकी कुछ कंपोनेंट्स है विच यू नो। अब नाउ समझिएगा, सम सेल्स आर द लीडर ऑफ पर्टिकुलर रीजन और ऑर्गन। अब जैसे कि अगर हमारे पार्लर में है, तो कुछ हमारा डिपार्टमेंट स्किन का डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पे ये मैनिक्योर पेडिक्योर फेशियल वैक्सिंग वगैरह होती है। तो कुछ लोग उस डिपार्टमेंट के वर्कर्स और उसी डिपार्टमेंट का स्किन डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। अब एक मेकअप डिपार्टमेंट होता है, तो मेकअप डिपार्टमेंट में फिर मेकअप आर्टिस्ट आ जाएंगे, ड्रिपिंग पीपल आ जाएंगे, इस तरह से मेकअप डिपार्टमेंट के वर्कर्स उसके हेड होंगे। फिर हेयर डिपार्टमेंट में जो कटिंग कलर स्ट्रेटनिंग पर्मिंग वगैरह करते हैं, फिर हेयर डिपार्टमेंट के वर्कर्स और हेयर डिपार्टमेंग के हेड हो जाएंगे। ऐसे करते करते नेल डिपार्टमेंट के जो नेल एक्सटेंशन नेल कल्चर करते हैं, तो नेल कल्चर के नेल वाले अलग हैं। तो ये सब अलग अलग रीजन्स के वर्कर्स हैं, और इनमें से कोई ना कोई हेड भी कई बार बनता है, ताकि हम अगर सपोज ब्यूटी डिपार्टमेंट में जैसे मेरे पास 9-10 लोग होते थे कई बार, तो अब मैं ब्यूटी डिपार्टमेंट में 9-10 कोई जैसे बोलना है कि ये स्कीम हमने लॉन्च कर दी है, या अब क्लाइंट आएगा तो उनको ये चीज हमने एक्स्ट्रा देनी है, तो मैं अब 9 लोगों को तो बताना एक बात होती है, पर हेड को रिस्पॉन्सिबल बनाना होता है कि इन 8-9 लोगों को समझ आ गया है कि ये वाली स्कीम इस समय इस हफ्ते में चलेगी। तो सम सेल्स आर द लीडर्स ऑफ पर्टिकुलर रीजन्स और ऑर्गन्स। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि लीडर सेल्स होते हैं उस पर्टिकुलर एरिया के, ठीक है। तो सम सेल्स आर द लीडर्स ऑफ पर्टिकुलर रीजन्स। रीजन्स का क्या मतलब होता है, जैसे कि स्टमक रीजन, जैसे कि आपके लेग्स रीजन, हैंड्स रीजन, ऐसे करके। कुछ ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि आपका हार्ट ऑर्गन, किडनी ऑर्गन, है ना, ब्रेन ऑर्गन। तो ऐसे करते करते कोई कई 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 चीजें रीजन्स में चल रही हैं या कुछ ऑर्गन्स में चल रही है, एंड दे मैनेज एंड डायरेक्ट ऑल द वर्किंग सेल्स इन दैट रीजन। अब जैसे मैंने सपोज एंजल हमारी हेड थी, हेड ऑफ मेकअप डिपार्टमेंट थी, या नील को मैंने नील को बोल दिया कि भैया हेयर डिपार्टमेंट में इस बार हमने ये करना है, ये तीन तीन इवेंट्स आ रहे हैं, ये टीम्स बना ले, ये काम करने हैं। तो मैंने नीचे टीम्स से कैसे काम करवाना है, नीचे जो बाकी वर्कर्स हैं उनसे कैसे काम करवाना है, ये नील का डिपार्टमेंट हो गया। तो नील को एक बार बात कर ली मैंने, तो वो नीचे संभाल लेता था सारा का सारा। उसी तरह से कुछ लीडर सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर हमारे, ये हम बातें नहीं कर रहे हैं, ये एक्चुअल में होता है। तो आपको समझ मतलब अगर समझ आ रही है तो ठीक है, ये एक्चुअल में ऐसे ही काम करते हैं। तो दे मैनेज एंड डायरेक्ट ऑल द वर्किंग सेल्स इन देयर रीजन्स और देयर ऑर्गन्स, ठीक है, लाइक योर ब्रेन, योर हार्ट, किडनीज, लंग्स वगैरह वगैरह जो भी होता है। तो यहाँ पर आप समझ रहे हो कि एक तो लीडर सेल्स होंगे और लीडर के अंदर वर्किंग सेल्स भी होंगे, ठीक है। तो द लीडर सेल ऑफ एन ऑर्गन डायरेक्ट्स, पढ़े। The leader cell The leader cell of an organ directs and manages all the other cells working in that organ, ensuring order and harmony so the organ works perfectly. Petrol cells travel throughout the 60,000 miles of एक मिनट एक blood. मिनट एक मिनट एक मिनट पहले आपने ये वाला डिपार्टमेंट समझ लिया जिसके अंदर वर्किंग सेल्स और लीडर सेल्स। तो लीडर सेल भी एक वर्किंग सेल ही है, पर वो उसको लीडर सेल का ओहदा मिला हुआ है ताकि वो डायरेक्ट कमांड ले पाए और ऑर्गन से प्रॉपर काम करवा पाए, ठीक है। तो ये ऐसे काम चल रहा है अंदर बॉडी के अंदर। द लीडर सेल ऑफ एन ऑर्गन डायरेक्ट्स and manages all the other cells working in that organs, ensuring order and harmony. अगर सपोज हार्ट सेल्स हैं, तो हार्ट के जो वर्किंग कैपेसिटीज होती हैं, जो उसकी वर्किंग ड्यूटीज हैं, जो उसका काम है, तो वो सारे वहां तक मैसेज जाना भी। डायरेक्ट का क्या मतलब, देखिए डायरेक्शंस देना बहुत जरूरी होता है। कई बार हमारी टीम में अगर 8 बंदे हैं फॉर एग्जांपल ब्यूटी के अंदर, हाँ, और बाहर और अगर उनके ऊपर काम छोड़ दिया हमने, तो वो तो एक ही फेशियल के ऊपर 2-2 घंटे लगा के बैठी रहती हैं अंदर। अगर बाहर वेटिंग में बैठे हुए क्लाइंट, तो हमारे को होता है ना कि थोड़ा स्पीड पकड़ो। स्पीड पकड़ो का मतलब होता है कि अब जैसे कि पैक उतारना है, हाँ, या फेस के ऊपर, या क्लाइंट को चेंज करवाना है, तो कई बार हमारे को उस चीज को डायरेक्शंस देनी होती है कि आज हमारे पास 8 बुकिंग्स हैं, एक एक रूम में 8-8 फेशियल्स होने हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको ऐसे ऐसे क्वालिटी भी बेस्ट मेंटेन करनी है। पर ये नहीं कि बीच में आप
अगर आप उसको डायरेक्शंस नहीं देते ना, कई बार जो वर्किंग सेल्स होते हैं उनको अगर ऊपर से एक डायरेक्शन ना मिले या एक मैनेजर उनको मैनेज ना करे, तो कई बार वो मस्त मोल्लड़ हो जाते हैं, अपनी अपनी धुन में चलना शुरू हो जाते हैं, अपनी डायरेक्शंस में चलना शुरू हो जाते हैं। कई बार बैठ के फोन पे गेमें खेल रहे होते हैं, कई बार गप्पे मार रहे होते हैं, कई बार चाय पीने का तो चाय पीने बैठ गए, कई बार ऐसे टॉयलेट गए तो टॉयलेट में जाके बैठ गए। होता है कभी ऐसे, देखा है आपने वर्किंग सेल्स के साथ ऐसे करते हुए? तो वर्किंग से ये नहीं कि वो बुरे लोग हैं, पर उनको वर्किंग सेल्स को डायरेक्शन की, मैनेजमेंट की, एक लीडरशिप की जरूरत होती है ताकि वो डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया से काम करे। तो वैसे ही हमारी बॉडी में भी अलग अलग ऑर्गन्स, अलग अलग रीजन्स हैं जिनके अंदर वर्किंग सेल्स हैं, और उन वर्किंग सेल्स को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए, उनको प्रॉपर डायरेक्शन देने के लिए एक लीडर सेल्स भी होते हैं, ठीक है। तो लीडर सेल्स ऑफ एन ऑर्गन डायरेक्ट्स एंड मैनेजेस ऑल द अदर सेल्स working in that organ, ensuring order and harmony so that the organ works perfectly. देखिए उस ऑर्गन का तो वर्क वो संभालेगा ही, है ना, कि वो उसमें ऑर्डर एंड हार्मनी बने रहे और वो ऑर्गन ठीक से काम करे, मतलब वो वाला ऑर्गन ठीक से काम करे। फॉर एग्जांपल आपका किडनी ऑर्गन है, अब समझने वाली बात क्या है, बड़े ध्यान से समझती है। जैसे कि मेरे ब्यूटी डिपार्टमेंट में एक फेशियल वाला बंदा है, हाँ, तो फेशियल कराना जो भी है। अब वो फेशियल वाले ने फॉर एग्जांपल हमें पता है कि क्लाइंट का इसके बाद हेयर स्पा भी होना है, हाँ, और फेशियल या क्लाइंट का इसके बाद ब्लो ड्राई होना है फॉर एग्जांपल। और मतलब एक होता है पर्टिकुलर ऑर्गन का फंक्शन मैनेज करना, एक होता है उसकी हार्मनी को बाकी फंक्शंस के साथ भी मैनेज करके आगे बढ़ना। हमें पता है कि क्लाइंट ने 5 बजे निकलना है, तो उसने बाद में अपना ब्लो ड्राई कराना है, तो भैया फेशियल वाले को हम बोल देते हैं इसके बालों को बचा के रखना, ऑयल मत लगाना, मतलब क्रीम या ऑयल वगैरह बालों को टच ना करे, तो इसके बाल फ्रेश रहे, नहीं तो फिर बाद में शैम्पू करना पड़ेगा, उसमें आधा घंटा और वेस्ट हो जाएगा, इसमें 5 बजे निकलना है। अब नाउ अंडरस्टैंड, एक तो होता है उस पर्टिकुलर ऑर्गन का पर्सनल अपने आप के साथ हार्मनी मेंटेन करना, ओके, पर ये हार्मनी और ऑर्डर जो उस ऑर्गन का अपना मेंटेन रहेगा। और जब एक एक ऑर्गन का मेंटेन रहता है, तो कई बार ऑर्गन्स आपस में भी हार्मनी में मेंटेन रहते हैं फिर। अब जैसे कि मेरा डाइजेशन ठीक है, उसके बाद मेरा एक्सक्रीटरी सिस्टम भी ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम अपने आप को ऑर्डर एंड हार्मनी में रखा हुआ है, डाइजेशन सिस्टम अपने आप को ऑर्डर एंड हार्मनी में रखा हुआ है, ओके। तो जब हमारे हर एक ऑर्गन अपने आप को ऑर्डर और हार्मनी में रखता है, अभी पहले पहले ये देख लो कि हाँ ये रख रहे हैं, ओके, तो पहले पर्सनल हार्मनी एंड ऑर्डर, उसके बाद ये बॉडी को, पूरी की पूरी बॉडी को ऑर्डर एंड हार्मनी में रखना शुरू कर देते हैं। सारे के सारे सिस्टम स्मूथली चलते हैं अगर वहां पर एक ऑर्गन का सिस्टम स्मूथली चल रहा है तो। पर वो कैसे चलेगा? जब वहां के वर्किंग सेल्स और वहां के लीडरशिप सेल्स ठीक काम कर रहे हैं। ये भी एक समझ है। अब आगे बढ़ते हैं, पेट्रोल सेल्स। Petrol cells travel throughout the 60,000 miles of blood vessels in your body to maintain order and peace. When there is a disturbance, such as a scratch to the skin, the petrol cells immediately signal the alert and the appropriate repair team rushes to the area. For a scratch, the first on the scene is the blood clotting team, and they work to arrest the blood flow. After their work is done, the tissue and skin teams move in to do the repair work to the area, mending the tissue and sealing the skin. तो आपने एक तो जो अपने अपने ऑर्गन्स को संभालेंगे, अपने अपने डिपार्टमेंट्स को संभालेंगे, वो है वहां का वर्किंग टीम्स और वहां की लीडर टीम्स जो है, ठीक है। अब जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या होता था कि मेकअप डिपार्टमेंट कर रहा है, हेयर कर रहा है, ब्यूटी कर रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, पर बाहर एक हमारी, जिसको पेट्रोलिंग सेल बोल रहे हैं इस समय, ये पेट्रोलिंग सेल का मतलब होता है जो घूम घूम कर सारे पार्लर में घूमती रहती थी, पूरे पार्लर में घूमती रहती थी, इवन रिसेप्शन पे आके भी इसका ये काम हो रहा है, इसका ये बिलिंग में चढ़ा दो, इसका ये काम हो रहा है, उसका ये स्लो चल रहा है, वो मीटिंग में बैठी हुई है अभी तक, उसका अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें मतलब घूम घूम कर एकदम से जहां पर कुछ गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ मतलब कि गड़बड़ क्या हो सकती है, जैसे कि उस क्लाइंट का था कुछ और काम, हो कुछ और रहा है, जैसे कि उसने नॉर्मल पेडिक्योर बुक किया, हाँ, पर हो रहा है उसका लग्जरी पेडिक्योर इस समय, तो कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, तो वहां पर कुछ भी डिस्टरबेंस है, कुछ भी गड़बड़ है, कुछ भी ये तो मैं एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आपको ये समझ आना चाहिए कि आपकी बॉडी एक्चुअली में वैसे ही काम करती है जैसे आपके घर, आपके ऑफिस, आपकी फैक्ट्रियां काम करती हैं। इसलिए इसका कोई लॉजिक नहीं है आपस में दोनों का। पर जब मैंने पहली बार ये सब बुक पढ़ी थी तो मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली फील हुआ था कि अच्छा, जैसे हमारा एक्सटर्नल सिस्टम काम करता है, जैसे हमारे घर में किचन डिपार्टमेंट, हमारे घर में कोई भी जैसे डिपार्टमेंट्स अलग अलग काम करते हैं, और हर डिपार्टमेंट का काम
अपना ऑर्डर एंड हार्मनी मेंटेन रखना होता है। और जब अब और वो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स ऑर्डर एंड हार्मनी मेंटेन रख रहे हैं, इसके लिए कोई पेट्रोलिंग सेल्स नहीं है जो घूम घूम कर देख रहे होते हैं कि अच्छा हार्ट ठीक काम कर रहा है, अच्छा ये स्किन ठीक काम कर रही है, अच्छा दिमाग ठीक काम कर रहा है इस समय, अच्छा ये दो। और जहां पर भी अगर उसको कुछ भी लगे कि कुछ भी ब्रेक डाउन है तो एकदम से रेड अलर्ट कर दो। सो व्हेन देयर इज अ डिस्टर्बेंस सच एज सपोज एकदम से स्क्रैच आ गया, चोट आ गया, या जैसे किसी मच्छर ने काट दिया आपको या किसी डंक वाले मच्छर ने काट दिया, तो एकदम से वहां पर आपको कुछ दर्द होगी या कुछ ऐसे रेड अलर्ट आएगा। रेड अलर्ट का मतलब कुछ ना सिग्नल आएगा आपको। द पेट्रोल सेल्स इमीडिएटली सिग्नल्स द अलर्ट एंड उस समय क्या होता है, अप्रोप्रिएट रिपेयर टीम रशेस टू द एरिया। नाउ अंडरस्टैंड, अप्रोप्रिएट रिपेयर टीम, जैसे कि अगर कट लगा है, खून आ गया, तो खून को रोकने वाली रिपेयर टीम। अब अगर सूजन आ गई, कई बार हमें चोट लगती है तो खून नहीं आ रहा पर सूजन आ गई, तो सूजन है ना, हर तरह की रिपेयर। जैसे सूजन में हम सफ्रामाइसिन थोड़ी ना लगा देंगे, सफ्रामाइसिन तो हम सिर्फ कट पे लगाते हैं, सूजन के ऊपर क्या लगाएंगे, कुछ है ना, कोई बाम टाइप चीज। तो हम बाहर से भी तो हमारे अलग अलग इलाज होते हैं ना। तो उसी तरह से अंदर, जैसे कि उसे जले पे आप बर्नॉल लगा रहे हो, है ना, सूजन के ऊपर शायद आयोडेक्स लगा रहे हो, कटे के ऊपर सफ्रामाइसिन लगा रहे हो। तो ऐसे करते करते जैसे कहीं पे खुजली हो गई तो आप शायद मे बी आप बेटनोवेट लगा दो या कोई स्किन क्रीम लगा दो। तो हर हर तरह की ब्रेकडाउन की अलग अलग तरह की ट्रीटमेंट है। वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह का ब्रेकडाउन है, किस तरह का रेड अलर्ट है, अकॉर्डिंगली द अप्रोप्रिएट टीम विल रीच टू द एरिया। एंड फॉर एग्जांपल स्क्रैच का सम एग्जांपल है, द फर्स्ट ऑन द सीन इज, फिर वो चेक करते हैं अच्छा क्या क्या हुआ है, कैसे हुआ है, अकॉर्डिंगली वो रिपेयर करना शुरू करेगा। एंड दे वर्क टू अरेस्ट द ब्लड फ्लो। जैसे सबसे पहले खून रोकेगा, अगर वहां पर एकदम से स्क्रैच आ गया, स्किन खुल गई है ना, जो भी वुंड है अगर। आफ्टर द वर्क इज डन, द टिश्यू एंड स्किन टीम मूव इन टू डू द रिपेयर वर्क टू द एरिया, मेंडिंग द टिश्यू एंड सीलिंग द स्किन। सबसे पहले कौन आएगा, पेट्रोलिंग टीम और रेस्क्यू, जो रेस्क्यू रिपेयर टीम होती है। तो रेस्क्यू रिपेयर टीम क्यों आएगी, क्योंकि सबसे पहले इसको यहाँ पे अलर्ट आया है। जैसे पुलिस वाले आपने कभी देखे होंगे, कभी आपने पुलिस वालों को चेक किया होगा, तो पुलिस वालों का एक होता है जो थाने की टीम होती है, थानों की टीम, जो जो कि आपके यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन होते हैं उनकी टीम्स होती हैं। एक जो जिसको हम कहते हैं पीसीआर, जो ये जिप्सी वाले होते हैं, 100 नंबर वाले, कभी नोट किया आपने। जैसे आप कभी अगर आपको सी इमरजेंसी में आ जाओ या मुश्किल में आ जाओ, तो आप एकदम से 100 नंबर को फोन करते हो, तो वो उसी समय जो भेजते हैं वो रेस्क्यू रिपेयर टीम होती है, जो उसी समय फटाफट आती है या उस समय मौके के ऊपर जाकर सब कुछ कंट्रोल करती है। पर एक बार वो वहां पहुंच जाती है तो उसके बाद थाने वाली टीम आती है, थाने में जो आपके लोकल थानों की टीम्स होती हैं। क्यों आती हैं, कि बाद में तो वही संभालेंगे सारा, पर उस समय एकदम से अलर्ट के टाइम पे ये पीसीआर पहुंचती है पहले। तो आफ्टर द वर्क इज डन, उसके बाद क्या होगा, द टिश्यू एंड स्किन टीम्स मूव इन टू डू द रिपेयर वर्क टू द एरिया, मेंडिंग द टिश्यू एंड सीलिंग द स्किन। तो उसके बाद उसी एरिया के, जो भी उस एरिया के थानेदार होंगे, जो उस एरिया के रिपेयर वर्क्स होंगे, जो जैसे हमने बात की थी ना शुरू में, क्या कि जो वर्किंग टीम्स हैं या लीडिंग टीम्स है, वैसे ही जो उस एरिया उस रीजन के जो वर्किंग सेल्स होंगे, उसके बाद उनको मिल जाता है वो काम, एक बार अगर ये इमरजेंसी वाले लोग अपना काम करके निकल जाते हैं तो इन एन इफ एन पढ़े। If an intruder enters your body, like a bacterial infection or virus, the memory cells immediately take an imprint snapshot of the intruder. हाँ, अगर आपकी बॉडी में कुछ भी एलर्जी आई है, जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल एकदम से गले में खराश आई है, तो एकदम से आपका जो मेमोरी सेल है, मेमोरी मतलब आपकी जो मेमोरी, आपकी मेमोरी जैसे जहाँ पे आपकी याददाश्त स्टोर होती है, मेमोरी सेल्स होते हैं, इमीडिएटली उसके इम्प्रिंट लेता है, स्नैपशॉट ऑफ द इंट्रूडर, कि ये कौन सा है, ये सेल कौन सा, अरे अरे वायरस है, अरे अच्छा वो एलर्जी हो गई, अच्छा हमने वो खा लिया उससे हमारे गले में खराश हो गई, अरे अरे वो तो ठंडा पी लिया, अच्छा आइसक्रीम खा ली, अच्छा ये कर लिया, कुछ ना कुछ इम्प्रिंट लेगा। देखिए, या तो वो पास्ट की मेमोरी से कोई ना कोई मैच करेगा कि ये वाली गड़बड़ कौन सी गड़बड़ है। मैंने क्या किया है, अच्छा ये वाला, अच्छा हाँ पिछली बार भी तूने खाई थी ना आइसक्रीम, देखता गला खराब हुआ था, ये ले। फिर ये मतलब कुछ ना कुछ आपको या तो पिछला वाला इम्प्रिंट ला के देगा। पढ़े। The imprint is checked against their records to see if there is a match with previous intruders. If they find a match, the memory cells immediately notify the relevant attack team to destroy the intruder. If there is no match, the memory cells open up a new file on the intruder and all the attack teams are summoned to move in and destroy the intruder. Whichever attack team is successful in destroying the intruder is then recorded by the memory cells in their files. या
तो मतलब आपके सिस्टम में देखिए, जैसे कि एक देश के अंदर कोई इंट्रूडर मतलब घुसपैठिए आ जाते हैं, हाँ, तो घुसपैठिए आ गए अंदर, अब आप पे डिपेंड, जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल इंडिया के बात ले लो, तो कभी मंगोलियंस एंटर कर रहे हैं, कभी टर्क्स एंटर कर रहे हैं, कभी मुगल एंटर कर रहे हैं, कभी ब्रिटिश एंटर कर रहे हैं। अब ब्रिटिश के लड़ने का स्टाइल ब्रिटिश स्टाइल होता है ना, और मंगोलियंस के लड़ने का स्टाइल बड़ा ही ब्रूटल एंड बारबेरियन होता है, तो बारबेरियन स्टाइल में लड़ते हैं वो। मुगल्स का अलग स्टाइल होता है लड़ने का, हर किसी का अपना अपना अटैकिंग पैटर्न है। कोई तलवारों से लड़ता है, कोई बंदूकों से लड़ता है, कोई भालों से लड़ रहा है, कोई कैसे, हर एक का अपना अपना अटैकिंग पैटर्न है। नाउ अंडरस्टैंड, आपकी बॉडी जैसे कोई attack आएगा, किसी भी इंट्रूडर का अटैक आएगा, घुसपैठिएगा, तो वो फटाफट अपना मेमोरी सेल से रिकॉर्ड निकालेगा कि भैया ये वाला अटैक क्या है, किस तरह से हम इसको कॉम्बैट कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको, हाँ, कैसे इसको डील कर सकते हैं। तो अगर तो उसके पास कोई पिछला रिकॉर्ड है कि ये अटैक हम जो पहले भी हो चुका है और ये वाला ऐसे 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 इसको हमने ऐसे निपटना है, तो वो वाला पैटर्न यूज करेगा। पर अगर उसके पास पिछला रिकॉर्ड नहीं है, तो वो जो भी उस समय बेस्ट पैटर्न है उसको यूज करेगा, मतलब अपने आपको बीमारी से, वायरस से, बैक्टीरिया से बचाने के लिए। और अगर उसके पास कुछ पैटर्न नहीं है, उसके पास बिल्कुल ही नया है, फॉर एग्जाम्पल द इम्प्रेंट इज चेक्ड अगेंस्ट their record to see if there is a match with previous intruder. If they find a match, the memory cell immediately notifies the relevant attack team to destroy the intruder. For example, पता चल जाता है जब मंगोलियंस है, ये लोग ऐसे ऐसे करेंगे, तो अकॉर्डिंगली अगर सपोज जैसे मंगोलियन है, घोड़े पे आए हैं फॉर एग्जाम्पल, हाँ, घुड़सवार है, और मैं पैदल पैदल अपने वो भेज दूं पैदल वाले, तो वो पैदल वाले उनके सामने काम नहीं कर पाएंगे। अगर सपोज हाथी वाले आया, कोई जैसे मुगल्स हाथी पे आते थे, तो हाथी वाली सेना से लड़ने के लिए मुझे भी हाथी वाले टाइप के लोग चाहिए होंगे, हाँ, मतलब डिपेंड्स ना वो किस तरह के अटैकर्स ना, अकॉर्डिंगली रेलेवेंट टीम्स मेरी भी वहां पर जाएंगी काम करने के लिए। तो हमारी बॉडी ऐसे ही काम करती है एग्जैक्टली, ओके। तो घोड़े वाले अगर घुड़सवार वालों की अगर अटैक हुआ, तो हमारे पास भी घुड़सवार रेडी होने चाहिए उस टाइम के ऊपर, नहीं तो फिर कई बार मैच ठीक नहीं होता, तो वो हमें ओवर पावर कर जाएगा, वो हमें जो भी वो इंट्रूडर आया है, तो वो हमारे कई बार होता नहीं, आपके ऊपर वायरल आएगा और आपके ऊपर बैठ ही गया आकर, आपको फिर पता नहीं क्या क्या और कौन कौन सी बीमारियां बड़ी 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 वो, क्योंकि उसने कब्जा कर लिया शरीर के ऊपर, उस वायरस ने, उस बैक्टीरिया ने, तो क्योंकि उस इंट्रूडर आया था। और जो भी, अच्छा, ये जो हम बातें कर रहे हैं ना, ये हम बातें कर रहे हैं अगर हमारी बॉडी बिल्कुल वाइटैलिटी में और फुल लाइफ के अंदर है, अगर हमारा सब सिस्टम बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, तो हमारी बॉडी ऐसे 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 से काम करती है उस टाइम पर, जो अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और हम आगे पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी ऐसे ऐसे काम क्यों नहीं करती है, हमारे सेल्स कहाँ सो रहे हैं, ये कहाँ गए हुए हैं सारे के सारे, किधर सारे बिजी कहाँ हैं, ये क्यों नहीं, जब इंट्रूडर आ रहे तो इन्होंने क्यों नहीं उनको अटैक करके उसको वहीं के वहीं विक्ट्री करी, तो ये कहाँ थे सारे, वो हम बात करेंगे आगे, क्यों हमारा सिस्टम वैसे काम नहीं कर रहा जैसे इसको करना चाहिए था। तो एनीवेज, तो यहाँ पर हम यहाँ देखा कि इफ देयर इज नो मैच, अगर तो मैच हो गया तो उसी समय हम डिस्ट्रॉय द इंट्रूडर कर देंगे, है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, the imprint is checked against the record to see if there is a match with previous intruders. If they find a match, the memory cell immediately notify the relevant attack team to destroy the intruder. उसी समय हमारी अटैक टीम आती है। अब देखिए एक नई टीम आ, उन्होंने हम पे अटैक किया, हम उन पर अटैक करेंगे अपने अटैक टीम के साथ। हमारी बॉडी में अटैक टीम्स होती हैं, ठीक है। वो कौन होती है हम आगे पढ़ेंगे। इफ देयर इज नो मैच, हमें पता ही नहीं चला कौन ये कौन है, ये जैसे कि सपोज कोरोना टाइम्स में कोरोना का इंट्रूडर आया था, तो कोरोना वाज ए न्यू इंट्रूडर, है ना, हमें पता ही नहीं था कोरोना क्या है, कौन है। तो इफ देयर इज नो मैच, द मेमोरी सेल ओपन्स अप अ न्यू फाइल ऑन द इंट्रूडर, कि ये तो पिछली वाले सारे बैक्टीरिया, सारे वायरस किससे भी मैच नहीं कर रहा है, तो नई तरह की बीमारी है, मतलब क्या हो रहा है ये, मतलब गले में खराश तो है, नाक में भी है, पर अंदर से सांसें नहीं रुक रही हैं, ये तो कुछ नया तरह का बीमारी आ गया। तो अब कुछ नई फाइल खुल गई ना इस समय। If there is no match, the memory cell opens up a new file on the intruder and all the attack teams are summoned. उस समय फिर सारी की सारी बुला ली जाती हैं, all, क्योंकि ये तो भैया कोई नए तरह का इंट्रूडर है, हमें नहीं पता इसका क्या वार आने वाला है। तो सारी की सारी अटैक टीम्स जो पहले अलग अलग, जैसे कि अगर सपोजिंगली अटैक टीम में देखिए, समझिए आपको बॉडी में दर्द हो रहा है, उसको संभालेगा कोई एक, आपको नाक में खुजली हो रही है, स्नीजिंग हो रही है, उसको संभालेगा, गले में खराश है, गले में स्वेलिंग आ गई, उसको संभालेगा एक, आपके कान के अंदर एकदम से भारीपन आ रहा है, उसको संभालेगा एक। तो ऐसे अलग अलग तरह की चीजों को संभालने के लिए अलग अलग अटैक टीम्स संभालती हैं। परंतु अगर एक ऐसा इंट्रूडर घुसपैठिया आ गया जिसके बारे में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो सारी की सारी टीम समन अप की जाएंगी, क्योंकि इसको संभालना है, क्योंकि ये बिल्कुल नया तरीके का अटैक है। तो ऑल द अटैक टीम्स आर समन्ड, okay, to move in and destroy the intruder. Whichever attack team is successful in destroying the intruder is then recorded by the memory cells in their file. तो अब हो सकता है कि आपके अंदर कई तरह के अटैक, जैसे कि प्रोटीन है, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं,
आपके अंदर जो है ना, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कई तरह की चीजें होती है ना, जैसे विटामिन में भी कितने तरह के विटामिन होते हैं, विटामिन ए बी सी, जैसे विटामिन B12 है, साइनोकोबालामिन। अब आपको पता भी नहीं है, हाँ, पर आपको क्या पता कि B12 जो साइनोकोबालामिन है, क्या पता उसने उस अटैक्टिव उस इंट्रूडर के साथ किया होगा। तो आपकी बॉडी में कई बार ये जो अलग 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 तरह से जो अंदर चीजें होती हैं, यही अटैक्टिव्स बनकर आपको डिफेंड कर रही होती हैं, ये जो बाहर से आपके अंदर इंट्रूडर्स आ रहे होते हैं। तो अब वो हमें नहीं पता ना, हमें नहीं पता। पर आप जैसे, अगर लेमन टर्म में मैं बताऊं तो मैं क्या बोलूंगी कि हाँ, जब मेरे को ये खांसी होती है ना, जुकाम होता है, तो अदरक खाने से मुझे आराम मिल जाता है। अब मुझे ये थोड़ी ना पता है कि अदरक अदरक के अंदर कौन सा विटामिन है, मिनरल है, क्या है। ये तो मैंने लेमन टर्म में बाहरी दुनिया की बात कर दी है। पर क्या पता अदरक में कोई ऐसा एंजाइम है, या कोई ऐसा अदरक में कुछ कुछ विटामिन है जिस मुझे नहीं पता वो क्या है। पर जब भी मेरा गला खराब होता है और मैं अदरक खाती हूँ, या अदरक को पीती हूँ पानी को, तो मेरे गले में जो जो अटैक हुआ है जिस वायरस का, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो कई बार बॉडी खुद ही बना लेता है वो चीज। हाँ, कई बार वो खुद नहीं बना रहा होता तो हमें एक्सटर्नली लेनी पड़ती है वो चीज। पर हमारे रिकॉर्ड ने तो रख लिया ना, जैसे कि अभी एक्सटर्नल रिकॉर्ड को समझो। गला खराब हुआ, हाँ, आपने काली मिर्च और अदरक का पानी पिया, आपका गला ठीक हो गया। तो ये भी तो मेमोरी में चला गया ना। तो अगली बार जब आपका गला खराब होगा, आप फिर से अपने आप ऑटोमेटिकली नहीं चले जाते हो पानी बनाने अदरक और काली मिर्च वाला। तो ये कि कौन बता रहा है आपको कि अदरक और काली मिर्च का पानी पी इस समय? ये आपका मेमोरी सेल ही तो बता रहा है आपको, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि अंदर क्या क्या चीजें हैं जो आपको बाहर से इस समय सप्लाई करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपकी बॉडी नहीं बना रही ना इस समय। वो क्यों नहीं बना रही, वो हम आगे पढ़ेंगे। पर ये तो पता चल गया कि इसको ऐसे और वैसे ही उसी वे में जैसे आपने बाहर से उसको सप्लाई किया है, वैसे ही वो अंदर से भी सप्लाई करता है, इफ यू हैव अ हेल्दी बॉडी। तो whichever attack team is successful in destroying the intruder is then recorded by the memory cells in their file। तो अंदर भी वैसे ही काम कर रही है, बाहर भी वही काम कर रही है। जैसे कि आपको कोई स्वेलिंग आ जाए, तो आपको पता होता है ना कि यहाँ पर मैं वो हल्दी वाला कुछ लेप कर दूं, या मैं वहां पर हॉट पैड रख दूं तो मेरे मेरे ठीक हो जाएगी स्वेलिंग, या मैं यहाँ पे ये लगा दूं तो मेरी ठीक हो जाएगी स्वेलिंग। तो आपकी मेमोरी ने रिकॉर्ड कर लिया है कि इन इंट्रूडर्स को कैसे आपने कॉम्बैट करना है। वैसे ही आपके इंटरनल बॉडी को भी पता होता है कि कौन कौन सी अटैकिंग टिप्स कब कब काम आती हैं। ठीक है। इफ द इंट्रूडर रिटर्न्स, कई बार वो ठीक होकर चला जाता है, कई बार रिटर्न भी आ जाता है, दोबारा भी आ जाता है। जैसे कि कई लोगों को बीमारी, हाँ, वापस भी आ जाती है ना, ठीक मतलब 2 दिन आपने वो कुछ भी था वायरल, 2 दिन में आज आप ठीक हो गए, पर फिर लगा दोबारा से अटैक आ गया। तो इफ द इंट्रूडर रिटर्न, द मेमोरी सेल्स विल नो हु दे आर डीलिंग विद एंड एग्जैक्टली हाउ टू डील विद देम। तो कई बार उसी टाइम कई बार बाद में भी वापस आता है, कुछ महीनों बाद, कुछ हफ्तों बाद। पर जब भी आप पे ये बॉडी पे अटैक होगा इंट्रूडर सेल्स का, जो आपकी बॉडी के अंदर डिस्कम्फर्ट करेंगे, आपकी बॉडी को ओवर पावर करेंगे, आपकी बॉडी को परेशान करेंगे, कि जो अंदर के अटैकिंग सेल्स होते हैं या मेमोरी सेल्स होते हैं, ये उस समय काम करते हैं हाउ टू डील विद देम। ये जो हम बातें कर रहे हैं, ये आपकी बॉडी के अंदर की रियल स्टोरी है। असल में ऐसे काम होता है आपकी बॉडी के अंदर। पढ़ें। If for any reason a cell of your body begins to change its behavior and cease to work for the good of the body, the patrol cells signal the rescue team to rush in to repair the cell. If a cell needs a particular chemical to be repaired, it is found inside your natural pharmacy. You have a complete pharmacy operating inside you that can produce every healing chemical that a pharmaceutical company can produce. हाँ, अब जैसे कि एक ऑफिस में, जैसे हमारे पार्लर में फॉर एग्जाम्पल, कोई कोई वर्कर ठीक से काम नहीं कर रहा अपने अपने डिपार्टमेंट के अंदर, मतलब जो विच इज नॉट गुड फॉर द पार्लर रेपुटेशन या गुड फॉर द पार्लर सर्विसेज फॉर एग्जाम्पल। तो वहां पर क्या होता है, पेट्रोल सेल जो घूम घूम के काम कर रहा होता है, वो देख रहा होता है, तो वो आके बताता है फिर कि भैया ये ठीक काम नहीं कर रहा है, इसकी वजह से क्लाइंट परेशान हो रहे हैं, ये ठीक फंक्शन नहीं कर रहा है, इसकी वजह से बाकी डिपार्टमेंट में परेशानी हो रही है, ये अंदर मनहूसियत फैला रहा है, ये अंदर देख लो मनहूसियत मतलब नेगेटिविटी फैला रहा है इस समय अंदर, इसको ठीक करो। तो ऐसे करके पेट्रोल सेल का क्या काम होता है, मतलब जो भी बॉडी के अंदर जो भी चीजें उसकी वर्केबिलिटी को हैम्पर कर रहे होते हैं, पेट्रोलिंग सेल्स घूम घूम के उसको चेक करता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस समय घूम रहा होगा, देख रहा होगा ब्रेन में, सारे डिपार्टमेंट देखेगा ब्रेन के, हाँ ब्रेन ठीक चल रहा है, अच्छा हाँ हाँ, आंखें ठीक चल रही हैं, हाँ अच्छा नाक ठीक चल रहा है, हाँ गला ठीक चल रहा है, हाँ अच्छा इसकी शोल्डर ठीक चल रहा है, हाँ अच्छा सर्वाइकल ठीक चल रहा है, हाँ चेस्ट ठीक चल रही है, हाँ देखो लंग्स ठीक चल रहे हैं, हाँ। तो ऐसे करते करते वो अपना कोई चेकलिस्ट लेकर उसको हर चीज को पेट्रोलिंग करता रहता है घूम घूम कर। जैसे कि अगर आपने कभी अपने एरियाज में देखा होगा, तो पेट्रोलिंग बाइक्स होती हैं पुलिस वालों की, पेट्रोलिंग जिप्सीज होती हैं पुलिस वालों की। तो वो दिन में तो करते ही करते हैं, रात को पेट्रोलिंग ज्यादा करते हैं। हैव यू सीन दैट?
तो रात को आप पेट्रोलिंग ज्यादा करते हैं, वो घूम घूम कर देख रहे होते हैं कि सारे ठीक हैं, कहीं पे कोई चोर चक्के या हाँ ऐसे कोई इंट्रूडर्स तो नहीं आ गए, जैसे किसी घर में कोई इंट्रूड कर, मतलब ऐसा होता नहीं, इंट्रूडर्स इनको तो कहते हैं जो घुसपैठी होते हैं। तो ढूंढ, और कहीं पे अगर कुछ गड़बड़ लोग या असामाजिक तत्व दिखते हैं तो उनको वो फिर कॉम्बैट करते हैं, चाहे खुद से करते हैं, फटाफट रिपेयर टीम्स बुलाते हैं जैसे भी करके, तो उस चीज को, हालात को कंट्रोल में लेते हैं। ठीक है, अब सपोजिंगली पेट्रोलिंग सेल ने देख लिया कि यहाँ पे ये बंदा असामाजिक तत्व है, ये ठीक काम नहीं कर रहा या आपकी बॉडी के अंदर भी आ जाते हैं सेल्स, ऐसे आपके सेल्स होते हैं बिगड़े सेल्स क्यों हो गया? क्योंकि इस नेगेटिव एनर्जी ज्यादा खा ली इसने तो नेगेटिव हुआ पड़ा इस समय। तो आपकी बॉडी के अंदर ही कई बार जैसे ओवरवेट हो जाना, हाँ हो सकता है आपकी बॉडी के लिए वो हेल्दी नहीं है, फिर भी आपकी बॉडी के अंदर फैट अक्यूमुलेट होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है, तो किसी का तो काम था ना इसको शेप में रखना, तो वो अपना काम नहीं कर रहे इस समय। क्यों नहीं कर रहे हैं? कुछ तो वहां पे ऐसा है कि फॉर, देखिए ये, इफ फॉर एनी रीजन अ सेल ऑफ योर बॉडी बिगिंस टू चेंज इट्स बिहेवियर एंड सीज टू वर्क फॉर द गुड ऑफ द बॉडी, वो कुछ भी हो सकता है, वो आंखों का हो सकता है, कान का हो सकता है, वहां पे जो वर्किंग टीम्स है, वर्किंग सेल है या लीडरशिप सेल है, अगर कोई भी वहां पर आपकी गुडनेस के लिए काम नहीं कर रहा है, तो पेट्रोल सेल का काम होता है सिग्नल द रेस्क्यू टीम, दोबारा से सिग्नल करता है रेस्क्यू टीम को कि इसको ठीक करो, यहाँ पे गड़बड़ चल रही है, ये देखो इसका ऑर्गन ठीक नहीं कर रहा है, ये देखो गड़बड़ कर रहा है यहाँ पर, इसको वो पता कैसे चलेगा? वहां पर रेड अलर्ट आएगा, आपको कुछ ना कुछ डिस्कम्फर्ट होगा, बाहर से आपको पता चलेगा यहाँ पे कुछ अंदर से रेड अलर्ट आ रहा है। वहां पर मतलब जैसे कि इस समय सपोजिंगली मैं अपनी बॉडी में देखूं, मेरी बॉडी में एक पर्टिकुलर ऑर्गन में रेड अलर्ट आ रहा है इस समय, तो रेड अलर्ट का क्या मतलब होता है कि या तो अंदर से टीम अब आपस में काम करनी शुरू हो चुकी है, जो मेरे वाली पेट्रोलिंग टीम है या मेरी वाली रेस्क्यू टीम है वो काम शुरू कर चुकी है, अंदर से उनका काम हो रहा है। पर अगर मुझे बाहर से कोई एक्सटर्नल उसको फोर्स या एक्सटर्नल कुछ सपोर्ट देना पड़ेगा, वो क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि मेरी इंटरनल टीम कमजोर है इस समय, वरना अदरवाइज नेचुरल तरीके में क्या होना चाहिए था, इफ द सेल नीड अ पर्टिकुलर केमिकल टू बी रिपेयर्ड, उस ऑर्गन में जो भी रेड अलर्ट हो रहा है उसको ठीक करने के लिए कोई भी दवाई चाहिए, कोई केमिकल मतलब जो अंदर रसायन तत्व, हमारे अंदर बॉडी में भी जो रसायन तत्व बनते हैं ना, एंजाइम्स बनते ही हैं, तो इट इज फाउंड इन साइड माई नेचुरल फार्मेसी, मेरी बॉडी के अंदर ही है वो नेचुरल फार्मेसी, जिसमें वो वाला पर्टिकुलर केमिकल, जैसे सपोज अभी हमारे को विटामिन डी के कैप्सूल खाने पड़ते हैं, विटामिन ई के कैप्सूल खाने पड़ते हैं, क्यों खाने पड़ते हैं विटामिन ई के कैप्सूल आपको? क्योंकि आपकी बॉडी अपने आप से विटामिन ई नहीं बना रही है, इसलिए आपको बाहर से सप्लाई देनी पड़ रही है। उसी तरह से अगर मेरे ये पेट्रोलिंग सेल्स से रिपेयर सेल्स काम नहीं कर रहे होंगे उस ऑर्गन में, तो मुझे बाहर से कोई ना कोई एक्सटर्नल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा इस समय। पर क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि वो अंदर से काम नहीं कर रहा। पर वो अंदर से काम क्यों नहीं कर रहा है, ये हम आगे पढ़ेंगे। You have a complete pharmacy operating inside you that can produce every healing chemical that a pharmaceutical company can produce. कोई भी, आपको बुखार है, आपको वायरल है, आपका गला खराब है, उसको कौन सा वाला एंजाइम, कौन सा वाला केमिकल, कौन सा वाला ट्रीटमेंट चाहिए, ये अंदर पूरी पूरी फार्मेसी हमारे अंदर इनबिल्ट है। हाँ, वो काम नहीं कर रही, वो अलग बात है। वो क्यों काम नहीं कर रही, वो कहाँ बिजी है, वो कहाँ सारे के सारे गायब हैं, वो आपको पता चलना चाहिए। आगे पढ़े। All cells must work as a team 24 hours a day, 7 days a week for their entire life. Their sole purpose is to maintain the life and health in your body. You have around 100 trillion cells in your body. That's this much 1 0 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 cells who who are working non-stop to give you life. All 100 trillion cells are under your command, and you are commanding them and instructing them with your thoughts, feelings, and beliefs. हाँ जी, तो ये जो अंदर इतने सारे जो 100 ट्रिलियन सेल्स है, इनका ये इस धरती पे इसलिए आए हैं, वो आपके शरीर इनको इसीलिए आए हैं। क्यों आए हैं? सिर्फ आपको जिंदा रखने के लिए, आपके सिस्टम को बढ़िया से चलाए रखने के लिए। हर समय 24/7, मतलब कि पूरे पूरे 24 घंटे वो काम करते हैं, कोई छुट्टी नहीं लेते। सोचो कि आपका दिल कह रहा है आज मैं छुट्टी ले रहा हूँ, मैं नहीं आज काम करूंगा, आज संडे है, और दिल आज बंद पड़ गया या आपका रेस्पिरेटरी बंद पड़ गया, तो क्या हालत होगी आपकी? हाँ, एक तो हमारे लिए इनको काम ही यही है, 24/7 हमारे लिए काम करना, 7 days a week। बदले में क्या मांगते हैं बेचारे? कुछ नहीं, सिर्फ आपका शुक्राना बस, और कुछ नहीं मांगते ये। पर काम पूरा करते हैं, पर काम अगर नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे वो हम देखते हैं कि हमने क्या गड़बड़ करी है इनके साथ। तो इनका पर आपको पता चलना चाहिए कि 100 ट्रिलियन सेल्स आपकी कमांड पे चल रहे हैं।
देखो कोइंसिडेंस नहीं है, किसी ने आज शुरू में शेयर किया कि उन्होंने बोला कि मेरे को कार्डियक हार्ट अटैक, जो भी उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ, क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि अपनी फ्रेंड को कि मेरे मरने से पहले तो मुझे मिलेगी ना, मेरे जाने से पहले, या मेरे जाने से पहले मेरे डॉक्टर लगाना है नाम के आगे। तो कौन बोल रहा है ये, कौन थॉट कर रहा है कि मेरे को मरना है? आप आपको कि मरना, अरे मरना तो सभी को ही, मरना इन द सेंस कि इस बॉडी की मियाद होती है, इस बॉडी की मियाद, क्योंकि हमारे को सांसें तो गिन के मिली हुई है ना। परंतु अगर हम ही बार बार इन चीजों को बोलते जा रहे हैं कि अरे मेरे तो घुटने खराब है, अरे मेरे तो ये, मतलब कि आपने अपने सिस्टम को हैम्पर किया, तभी तो एक कार्डियक अरेस्ट या कोई भी इस तरह का, ये जो भी इंटरनल एक्सटर्नल कोई भी ब्रेकडाउन आता है। आप बोलोगे एक्सीडेंट, हाँ एक्सीडेंट भी आप ही कॉल कर रहे हो, आप ही समन कर रहे हो एक्सीडेंट्स को भी, किसी भी तरह की एलर्जीज को, एक्सीडेंट्स को, बीमारियों को, सब के सब आपकी ही बनाई हुई पैदाइश है, सब टोटल। आपके शरीर को हल्का फुल्का, हेल्दी, बढ़िया, आनंद में रहने के लिए बनाया गया था, और वो ऐसा ही रहता अगर आप अपने ये पापों की गठरियां उठा के ना घूम रहे हो तो अपने साथ, अपने कर्मों की, अपने पापों की गठरियां। क्यों? वो कौन बना रहा है? आप। और कौन बना रहा है? आप। कैसे बना रहे हो? सोच कर, सोच कर, फील कर, अपने बिलीफ्स बनाकर। बॉडी के बारे में भी अच्छे बिलीफ भी बना रहे हो, बुरे बिलीफ भी बना रहे हो, नेगेटिव बिलीफ भी बना रहे हो, गुड फीलिंग्स भी बना रहे हो। नेगेटिव फीलिंग, गुड फीलिंग, नेगेटिव थॉट, गुड थॉट, नेगेटिव बिलीफ, पॉजिटिव बिलीफ, सब कुछ कौन बना रहा है? आप ही तो बना रहे हो। और आपकी उस बनाने की वजह से आप अपने इंस्ट्रक्टिंग कर रहे हो, कमांडिंग कर रहे हो अपने बॉडी को। आपने आज आपकी बॉडी जो भी है, ये आपके ही पिछले कर्मों का नतीजा है। कर्म किसे कहते हैं? यही सोच कर, बोल कर, फील करके जो भी आपने बनाया, और उसकी वजह से एक बिलीफ, एक सोच बन गई आपकी, एक बहुत ही गूढ़ सोच, एक बहुत ही गूढ़ विश्वास। पर विश्वास किसने बनाया? आपने बनाया ना। वट एवर यू बिलीव अबाउट योर बॉडी, योर सेल्स बिलीव टू। आप अपनी बॉडी के बारे में जो बोलते हो ना, जो आपका विश्वास है, देखो बोलना एक बात होती है, बोलना, सोचना, ये एक बात है, पर फील कर लेना, सोचना और फील कर लेना, जब आप किसी चीज को सोच रहे हो और फील करो, यानी कि दिल से फील करते करते उस चीज को सोच रहे हो, ये उसने बोला था ना पिछले लाइन के अंदर, व्हेन यू थिंक फ्रॉम इन हार्ट। ओके, वो एक स्टेज आती है जो आप अक्सर करते हो। ये मत सोचना कि आप नहीं करते हो, आप बहुत करते हो। आपकी जिंदगी की जितनी मनहूसियत है वो वहीं से तो निकली है। क्या कि आपने फील करते करते थिंकिंग कर ली, और थिंकिंग करते करते फीलिंग ले ली है। कोई चीज तब तक प्रकट हो ही नहीं सकती आपकी लाइफ में जब तक कि आपने सोचा, जिसमें अपने दिमाग और दिल को इकट्ठा ना किया हो। ध्यान से समझना, आपकी जिंदगी में जो भी चीजें, आप तो करोड़ों चीजें सोच रहे हो, आप तो करोड़ों चीजें फील भी कर लेते हो कई बार, परंतु जब आपका दिमाग और दिल दोनों इकट्ठा हो जाता है तो ही वो चीज प्रकट होती है। ठीक है? तो वट एवर यू, और आपका बिलीफ कैसे बनता है? बिलीफ भी ऐसे ही बनता है। बिलीफ इसी को तो कहा जाता है, किसको? सोचने और फील करने की दुनिया को बिलीफ बनाने के लिए यूज किया जाता है। जब आप कोई चीज बार बार सोच रहे होगे तो शायद बोल भी देते होगे, है ना? तो बोल भी देते होगे, बोलना सुनना भी उसी का पार्ट बन जाएगा फिर वो सोचने, क्योंकि आप सोच रहे हो, बोल रहे हो, फील कर रहे हो, और उसी चीज को आप बार बार रिपीट मोड के ऊपर कर रहे हो, तो वो बिलीफ बन जाएगा। तो वट एवर यू बिलीव अबाउट योर बॉडी, योर सेल्स बिलीव टू। अगर आप अपनी बॉडी के बारे में जो भी बोलते हो, जैसे कि आई रिमेम्बर when मेहर वॉज वेरी यंग, मेहर मेरा बेटा, हमारे घर में मोस्टली सब लोग छोटे हैं, हाँ मतलब छोटे इन सेंस हाइट के अंदर 5'9" इज द मैक्सिमम मेरे हस्बैंड की है। एंड बाकी मेरे देवर, मेरे जेठ, मेरे ससुर तो उससे भी छोटे हैं। तो और हमारे घर में सब लोग छोटे ही थे, मतलब जैसे, पर आई ऑलवेज यूज्ड टू से मेहर को कि तेरे को ना 6 फुट के, जैसे मतलब आई ऑलवेज वांट माय सन टू बी 6 फीट टॉल। तो मतलब कि एंड ऐसे करके, तो वो कहता अच्छा घर में सारे तो छोटे छोटे से हैं। तो और अच्छा वो मेरे ख्याल 10th तक भी छोटा सा ही था, मतलब ही वॉज वेरी स्मॉल, मतलब आई थिंक 5 फीट भी मुश्किल से था 10th में भी, आई डोंट रिमेम्बर, बट बहुत छोटा था। तो हर कोई ये कहता था ये तो बिल्कुल छठी क्लास का लगता है, तो छोटा सा है, छोटा सा है, छोटा सा है। तो चलो जब तक आपने उस चीज को किया तो वो वैसा रहा। तो एक दिन मेरे दोनों ब्रदर 6 फीट टॉल है। तो मतलब कि एंड आई ऑलवेज टू से कि मेरे मेरे मतलब मेरा बेटा भी ऐसा ही दिखे, इतना टॉल और इतना हैंडसम दिखे। तो एंड वन डे आई डोंट नो व्हाट, मतलब एक बार मामे के साथ कहीं गया होगा या कुछ, तो मामा ने ऐसे को समझाया होगा कि ऐसे बास्केटबॉल खेला कर, घर में रॉड लगा ले, टंगा कर, ऐसे ऐसी डाइट लिया कर, ऐसे करके जो भी उसने बोला होगा, मतलब आई डोंट नो व्हाट कन्वर्सेशन दे हैड, बट आई रिमेम्बर कि आफ्टर दैट वीक और सो समथिंग टर्न्ड इनसाइड हिम। तो उसने कुछ चेंज किया, पता नहीं क्या चेंज किया, और उसने रॉड पे, मतलब जो भी उसने किया वो तो बात की बात है, तो पर उसके अंदर पे कोई थॉट चेंज हुआ होगा, उसने कुछ फील चेंज किया होगा, और उसने कुछ बाहरी दुनिया के अंदर कुछ अपने उसे अकॉर्डिंगली अपनी कमांड भी चेंज कर दी होगी। एंड विद इन आई थिंक फ्यू वीक्स और फ्यू मंथ कुछ अजीब सा हुआ। अजीब सा क्या हुआ?
Suddenly he started becoming really tall. एंड मतलब विद इन फ्यू मतलब 1 साल 1.5 साल लगा होगा उस चीज को पूरा होने के अंदर, बट ही बिलीव्ड हिज बॉडी टू बी 6 feet tall. He believed himself to be really stout and handsome. He believed himself to be really someone who's really macho. मतलब कि macho वाली जो फील होती है, तो उसने बिलीव किया उस चीज को, and actually his body became that. मतलब आप जिस चीज को सोच रहे हो, बिलीव कर रहे हो, आपकी बॉडी वो बन जाएगी, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर डीएनए, योर हेरिडिटी, योर क्रॉनिक्स, योर वगैरह वगैरह बकवास जितने भी हम बोले. हाँ, आपने अगर बिलीव कर दिया कि मेरा खानदान सारा का सारा 5 फुट का है तो हम भी 5 फुट ही रहेंगे, ठीक है, फाइन, ओके फाइन, आपने बिलीव कर लिया ना. वट एवर यू बिलीव, क्योंकि आपका बिलीव कैसे बन रहा है, आपकी सोच से. आप अपने स्किन कलर को, अपने बालों के कलर को कौन बना रहा है, आप बना रहे हो. Whatever you believe about your body, your cells believe too. तो आपके सेल्स क्या, अब बाद में हम पढ़ेंगे चैप्टर में आगे बढ़ते बढ़ते, आपके मोस्टली सेल तो 1 महीने में चेंज हो जाते हैं, 1 महीने में रेनोवेट कर लेते हैं अपने आप को. आपके सेल्स तो हर क्षण भंगुर है ना, ये क्षण भंगुर बोलते हैं, मतलब ये हर सेल हर सेकंड में बन रहे हैं और मिट रहे हैं, बन रहे हैं और मिट रहे हैं, बन रहे हैं और मिट रहे हैं. तो मतलब आपके कितना % सेल तो हर महीने में रेनोवेट हो रहे हैं. कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कुछ 6 महीने लेते हैं रेनोवेट होने में, पर आपकी बॉडी के मैक्सिमम मतलब 99% सेल पूरे 1 साल में रेनोवेट हो जाते हैं. तो अगर रेनोवेट हो रहे हैं, तो अगर आपने 1 साल तक सोचते रहे कि मैं बहुत गोरा हूं, मैं बहुत गोरा होने के लिए थैंकफुल, गोरा आप बिलीव कर रहे हो कि आप गोरे हो, या बिलीव कर रहे हो कि आप टॉल हो, तो फिर आप क्यों नहीं होगे लंबे, या आप क्यों नहीं होगे टॉल, या क्यों नहीं आपके बालों का कलर चेंज हुआ, या क्यों नहीं आपकी आंखों का कलर चेंज हुआ, क्यों? क्योंकि आपने उसको एक पर्टिकुलर टाइम तक रिपीट मोड पे बिलीफ को बना के नहीं रखा. आपने उस बीमार आपके अंदर अगर आपकी बॉडी के सेल सारे चेंज हो रहे हैं, तो बीमारी अंदर क्यों अभी तक बैठी है? क्योंकि आपने उस बीमारी पे बिलीव कर लिया है, इसलिए बैठी हुई है. आप उसी के बारे में सोच रहे हो, बीमारी के बारे में, उसी के बारे में बातें कर रहे हो, उसी के बारे में आप फीलिंग ले रहे हो, इसलिए बीमारी अंदर घर करके बैठी हुई है. वरना बीमारी जैसे आपके सारे सेल्स चेंज हो रहे हैं, तो बीमारी भी तो घुल के बाहर निकल जानी चाहिए थी ना. क्यों नहीं निकली? क्योंकि आपने नया बिलीफ ही नहीं बनाया जो आपको चाहिए था. सो वट एवर यू बिलीव अबाउट योर बॉडी, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू, मैंने अपने बच्चों के होते हुए देखे हैं, इसलिए मुझे पता है. इनके बालों पे भी मैंने देखा है, इनके बाल कब सिल्की थे, कब कर्ली हो गए, कब रफ हो गए. तो इनके कुछ सोच रहे हैं ना उस बारे में. आपके बाल भी तो आपकी बॉडी का पार्ट है. मतलब मैंने अपनी आंखों से देखा कि इनके बालों का कलर एक टाइम पे, मेहर के बालों का कलर गोल्डन था. इसके बाल जब बचपन में था ब्राउनिश गोल्डन थे इसके बाल, वेरी सिल्की एंड ब्राउनिश गोल्डन. फिर धीरे धीरे टाइम के साथ कर्ली हो गए, फिर रफ हो गए, फिर ऐसे इसके कलर भी चेंज हो रहा है बालों का. तो कुछ तो चल रहा है इसके अंदर जो ये सोच रहा है या फील कर रहा है या बिलीव कर रहा है किसी चीज को. वो क्या है, वो तो वो जाने ना. मैं अपने बारे में जानती हूँ, मैं अपनी स्किन के बारे में बता सकती हूँ, अपनी बॉडी अपनी हेल्थ के बारे में बता सकती हूँ. कई बार हमारे कुछ बिलीव्स जो होते हैं बड़े प्रोमिनेंट बिलीव्स होते हैं जो हमारे को पता होते हैं. कुछ बिलीव्स बहुत सबलाइम होते हैं. सबलाइम का मतलब कि वो इतने बारीक होते हैं, इतने गहराई तक होते हैं जो हमें ही नहीं पता होते हैं, पर हमने बनाए बैठे हैं. वो हमारे हमारे पीछे से हमारे अंदर, हमारे संस्कारों में, हमारे सोच में, हमारे विचारों में, हमारे विश्वासों में, निष्ठा में, आस्था में, हर चीज में घुस के बैठे होते हैं अंदर. तो अब आपको ही तो पकड़ना होगा. अगर आपने पिछले 2 दिन का काम किया, तो आप में से कई लोगों ने कुछ ऐसे ऐसे विश्वास या ऐसे ऐसे बिलीफ अपने ढूंढे होंगे जिसको देखकर आप ही शॉक हो गए हो कि क्या मैं, ये मेरा बिलीफ है. कितने लोगों को ऐसे बिलीफ्स मिले हैं से यस, कि मतलब मैं अपने नेल्स के बारे में ये सोचती हूँ, मैं अपने हेयर के बारे में ये सोचती हूँ, मैं अपने टांगों के बारे में, घुटनों के बारे में ये सोचती हूँ, या ये मेरा बिलीफ है, ये मेरा विश्वास है. कई बार जब हमें अपने विश्वासों के बारे में पता चलता है, हम ही शॉक हो जाते हैं, क्योंकि विश्वास इतनी गहराई में होते हैं कि कई बार हमें ही नहीं पता होता ये हमारा विश्वास है. पर आप जब ढूंढोगे तो आपको मिलेगा ना ये. एंड इट इज, आई एम टेलिंग यू, दिस इज अ लेबर जॉब. ये एक बार तो मेहनत करनी पड़ती है इस बारे में, वरना आपको ही नहीं पता आपका विश्वास क्या है, तो आप नया विश्वास कैसे बनाओगे? आप तो ऊपर से लिपापोती कर जा रहे हो बस. जो नहीं कर रहे होमवर्क तो बैठे रहो बैठकर, क्योंकि ये थोड़ा मेहनत वाला चैप्टर है. ठीक है, वट एवर यू बिलीव अबाउट योर बॉडी, योर सेल्फ बिलीव इट टू. दे डोंट क्वेश्चन एनीथिंग यू थिंक, फील और बिलीव. अगर आप कह रहे हो सुपरमैन हो, आप उड़ सकते हो, आपकी बॉडी कहेगी पंख बनाओ इसके. एज सिंपल एज दैट. दे डोंट क्वेश्चन वो क्या कह रहे हो, नहीं कह रहे हो. अगर आप बिलीव करते हो कि आप स्पाइडरमैन हो, आप ऐसे, आपके हाथों में से रस्सियां निकलेंगी, आप उड़ जाओगे, तो बॉडी विल स्टार्ट मेकिंग वेब इनसाइड योर बॉडी एंड दे विल क्रिएट. ये मैं जोक कर रही हूँ, सच मत मान लेना. जोक इसलिए क्योंकि पहले नॉर्मल में तो आ जाओ. पहले अगर आज आपकी बॉडी, अगर आप बोलते हो कि आपकी बॉडी अक्षय कुमार जैसी है, आपकी बॉडी ऐसी है, या आपकी बॉडी, पहले उसको तो बना के दिखाओ.
अगर आप कहते हो कि मेरी बॉडी में इतनी ताकत हो कि मैं इतने पुशअप्स मार सकती हूँ या इतने मेरी कमर इतनी होनी चाहिए, पहले वो तो करके दिखाओ। आप बॉडी के जो विजिबल डोमेन है पहले उसको तो मास्टर करो। आपके बाल, आपकी स्किन, आपके हाथ, आपके पैर, आपका इम्यून सिस्टम, आपकी वर्केबिलिटी, आपकी एफिशिएंसी, पहले इसको तो मास्टर करो। जब आप इसको मास्टर कर लोगे तो आप अपने आप रिद्धि सिद्धियों की दुनिया में एंटर कर जाओगे। जो लोग पैसे को मास्टर नहीं कर सकते वो उन खजानों में एंटर नहीं कर सकते। जो लोग बॉडी को मास्टर नहीं कर सकते, इस एक्सटर्नल रेल्म, अगर आप इस समय अपने 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 वेट आपका वो है, जो आपकी बॉडी की शेप आपकी वो है, जो आपकी आइडियल, जो आपकी वांटेड शेप है, हाँ, तो अंदर काम करना शुरू करोगे। इसके बाद धीरे 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 देखिए आप कैसे इसको लेवल अप कैसे करोगे। लेवल अप कैसे करोगे, पहले इसके इस रेल्म पे मास्टर करोगे, फिर नेक्स्ट रेल्म पे जाओगे। तो आप जब आप एक जैसे सुपरमैन बनना है, हाँ, सुपरमैन जिसको हम कहते हैं सुपर पावर्स, तो पावर तो आपके पास है। अभी हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, पावर। यही पावर आपको अंडर पावर, डिसम पावर, वो भी यही है। और यही पावर आपका सुपर पावर, सुपर नेचुरल पावर, वो भी यही है। पावर यही है। इसी को आप ऊपर भी ले जा सकते हो, लेवल्स के ऊपर, नीचे भी ले जा सकते हो, चॉइस आपकी। और जो भी आप पावर, अगर आपको समझ आ जाए, अगर आप किसी चीज को बिलीव करते हो इन अ पॉजिटिव वे, इन अ रेगुलर वे, इन अ कंसिस्टेंट वे, योर बॉडी विल टेक इट एज अ कमांड। आप मुझसे पूछो, अगर कोई मुझे बोले कि उसकी आंखों का कलर चेंज हो, कोई बंदा बोले कि मैं 60 साल का हूँ, मेरे 2 फुट हाइट बढ़ गई, मैं कहूंगी ओके ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन, आई वॉन्ट क्वेश्चन इट क्योंकि मुझे पता है यू कैन डू इट। आई एम क्लियर यू कैन डू इट। एनीथिंग इज पॉसिबल। ओनली थिंग इज कि तेरे पास पावर कितनी है तेरी पावर है तो भाई, मेरे मेरे दिमाग में ना एक बात सेट है। जिस दिन मैंने पहली बार मारीच को, एक एक ह्यूमन बॉडी, मतलब एक मारीच को मैंने हिरन बनते हुए सुना, देखा, और मैंने देखा लोग विश्वास भी करते हैं इस चीज के ऊपर कि वो हिरन बन गया और वो फिर राम जी के आगे आगे भाग रहा है, और वो एक्चुअली में हिरन नहीं है, वो कोई और है। और जैसे कि फिर मैंने कभी ताड़का की स्टोरी सुनी कृष्णा के वे में, कि उसने वो ऐसी थी, फिर उसने औरत बन गई, फिर वो ये बन गई वगैरह वगैरह, हाँ। तो वो स्टोरीज मैंने बचपन में सुनी हुई है और मैं बिलीव करती हूँ इन बातों को, क्योंकि ये मुझे पता है ये होती हैं, ये बातें 100% होती हैं। और फिर मैंने इच्छाधारी, कभी कोई मूवीज देख ली होंगी, जैसे इच्छाधारी नागिन की, इच्छाधारी इंसान की, तो मुझे पता है। पर वो इच्छाधारी हैं और वो अपनी इच्छा को सच करना जानते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई शक्ति है, क्योंकि उनके पास कोई पावर है, कोई एनर्जी है। तो वो पावर एनर्जी की तो हम बातें कर रहे हैं इस समय। और अगर कोई मुझे बोले कि उसके बालों का कलर चेंज होता है, हाँ तूने किया है, क्यों किया है, अब तू तू ही जाने कि तेरे क्या अंदर थॉट बिलीफ चल रहे हैं। तुझे लगता है कि हाँ ये तेरे को ज्यादा सूट करेगा या ऐसे करने से तेरे को बेनिफिट हो जाएगा, तो आप बालों का टेक्सचर क्या, कलर क्या, डेंसिटी क्या, कुछ भी बना सकते हो। आप अपना रंग रूप क्या, अपनी आंखों का रंग रूप क्या, अपनी स्किन का क्या, अपना हाइट क्या, ऊपर नीचे, अपनी बॉडी क्या, पतला मोटा, अपने अंदर के ऑर्गन्स का क्या पता, क्या कर सकते हो। मुझे क्या पता, आपके बिलीव्स हैं, मैं अपना संभाल लूं बहुत बड़ी बात है बातें करने के लिए बहुत सुंदर है बातें, पर जब करने की बारी आएगी ना, जब आप सच में यू आर ऑन द ग्राउंड, बेटे जब ग्राउंड पे होते हैं ना, जब हम लोग, और सब जब जब कहते हैं ना व्हेन द रबर मीट्स द रोड, ऐसे करके एक वो होता है, डायलॉग होता है। तो जब मैं कभी ऐसी चीजों में अपने गेम्स में अपने आप को डालती हूँ, व्हेन द रबर मीट्स द रोड, तो वो जो झरीटें निकलती हैं ना, वो जो चिंगारियां निकलती हैं ना, वो जो फ्रिक्शन निकलता है ना, बड़े बड़े जल जाते हैं उसके अंदर, कई बार भाग भाग के वापस आ जाते हैं। व्हेन यू रियली आर इन द जिम एंड यू रियली आर कमिटेड, आपको क्या लगता है, हाँ, जो जो लोग प्राप्त करते हैं बॉडीज ऐसी वाली, ऐसी मिल गई उनको? नहीं, नहीं, जो लगा सो लगा, जिसने लगाया उसको मिल गया, जिसने भी लगाया उसी को मिला। मतलब मैं तो क्लियर कट कहती हूँ, मतलब दे डोंट क्वेश्चन, मतलब ये समझ लो पहले, ओके। पर जिसने भी प्राप्त करी है, हर किसी ने इसको गो थ्रू तो किया ही किया है, क्या अपने बिलीफ को गो थ्रू किया है। जैसे कि उस टाइम तक, फॉर एग्जांपल मैं अभी रिसेंट दूं ऋतिक रोशन का एग्जांपल। ऋतिक रोशन हैड अ ग्रेट बॉडी, बट देयर वाज अ टाइम इन बिटवीन जब उसका पर्सनल लाइफ में भी क्राइसिस था, एंड आई हैव सीन हिम गोइंग डाउन। अर्जुन रामपाल का भी गोइंग डाउन हुआ था, मतलब इन सबकी बॉडीज में दिख रहा था कि अभी जैसे फरदीन खान का बहुत जबरदस्त गो डाउन हुआ था, और अब उसने वापस से गेन बैक, मतलब अपनी बॉडी का लुक गेन बैक किया है। तो इफ यू सी दिस ऑल गाइज, हाँ, या गर्ल्स के अंदर भी होता है सेम। तो ये तो मैं एग्जांपल ले रही हूँ। ये हो ही नहीं सकता कि ये बॉडी के ऊपर काम कर रहे हो विदाउट बिलीफ के साथ। इनके साथ 100% एक मेंटोर काम कर रहा होता है उस समय, कोई मेंटोर जो इनके मेंटल पे काम कर रहा होता है उस समय। जैसे उसका तो मुझे पता है, ऋतिक का तो वो है, आरफी अफरीन है ना शायद, तो अफरीन है वो, तो आई नो हिम। तो मतलब अफरीन काम करता है ऋतिक के साथ। तो मतलब कि
दिमाग पे काम करेंगे, पहले दिमाग को चेंज करना शुरू करेंगे, इनके थॉट्स को चेंज करेंगे, इनकी फीलिंग्स को चेंज करेंगे, इन कन्वर्सेशंस को चेंज करेंगे। आप देखना जिस टाइम पे ये लोग अपना ये बॉडी पे काम करना शुरू कर रहे होते हैं ना, उस टाइम पे इनकी वीडियोस बड़ी इंस्पिरेशनल वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगी। कभी नोट किया आपने? ये लोग बातें भी बड़ी पॉजिटिव पॉजिटिव करना शुरू कर देंगे उस टाइम पर। तो मतलब ऐसे कि मतलब बड़ी होपफुल, बड़ी पॉजिटिव बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अरे उनका पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा होता है उस टाइम पर। सिर्फ ये थोड़ी ना कि सिर्फ आपने खाना अच्छा खाना शुरू कर दिया और आपकी बॉडी बन जाएगी। नहीं 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 नहीं, इट्स ए कंप्लीट पैकेज। इट्स ए कंप्लीट पैकेज। आपको अपनी कंपनी पे भी ध्यान देना होगा उस टाइम पे, आप किस कैसे लोगों के बीच में उठ रहे हो, बैठ रहे हो। क्यों? क्योंकि बिलीफ बन रहा है ना आपका। आप बीमार हो अगर, हाँ आप बीमार हो, हमारे यहाँ देश में बीमारियां क्यों नहीं जाती? क्यों? जैसे एक बंदा बीमार है, उसको कोई प्रॉब्लम हुई है, वो हॉस्पिटल में पहुंचा है। हाँ अब अगर सपोज वो उसको पता चल गया मेरे को बीमारी है, तो आसपास वाले लोग तो वो होने चाहिए ना जो उसको पॉजिटिव बोलें, जो कहें हाँ बिल्कुल ठीक है। तो यार ये तो मतलब हमारे लोग ही इतने मनहूस आते हैं मिलने वाले, "हाँ, क्यों हो गया? क्या हो गया? होए 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 होए, ते ਤੁਹਾਨੂੰ भी हो गया है, वो बंदा ते उन्होंने भी होया, सो तो मर गया ले इसको भी मारेंगे अब तो।" मतलब कि इसको होप देना, इसको पॉजिटिविटी में रखना, इसको उस चीज के लिए सच में होपफुल बना के आगे ले जाना, ताकि इसके बिलीफ पॉजिटिव रहे। ये की कैसे बनेंगे बिलीव्स? हम लोग के बिलीव्स क्यों नहीं बनते? क्योंकि आपने जो सोच रहे हो, आपकी सोच कई चीजों से कंट्रीब्यूटेड होती है। क्या 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 पढ़ रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, है ना, क्या सूंघ रहे हो, क्या खा रहे हो, हर चीज तो आपकी सोच को कंट्रीब्यूट कर रही है, सेंसेस को। तो आपकी सोच इतनी जगहों से खाना लेती है अपना, तब सोच बनी। उसके बाद आप क्या बोल रहे हो, आप बोल क्या रहे हो? जैसे कि एक लेडी अभी आई ग्रेटर नोएडा से, वो कह रही कि मेरा ये बहुत ब्रेक थ्रू हुआ, बहुत से हुआ। अब वो अपने ब्रेक थ्रू शेयर कर रही है, और उस समय ये भी साथ साथ में बोल रही है कि अब तो मैं बिल्कुल कोशिश करती हूँ मेरे मुंह से कुछ भी वैसा ना निकले कि जो मतलब नेगेटिव हो। जो अब क्या बोल दिया यार तूने, कि मैं तो बिल्कुल कोशिश करती हूँ मेरे मुंह से कोई भी नेगेटिव बात ना निकले, मैं तो कुछ नेगेटिव सोचू ही ना, नेगेटिव बोलू ही ना। पर जो आप बोल रहे हो ये भी तो नेगेटिव है, कि मैं ना बोलूं, मेरे मुंह से कोई नेगेटिव बात ही ना निकले। तो आप देख रहे हो आप बोल क्या रहे हो। And now, if you are in the right company, if you are in a right group of people, at least they will warn you, they will at least pinpoint कि ये वाली चीज को पॉजिटिव कर, दोबारा से पॉजिटिव कर, पॉजिटिव पॉजिटिव कर। क्यों? क्योंकि the more you speak of what you want, the more you speak of what you really want to be, the beliefs are being formed. आप तो कर ही रहे हो, पर कई बार बाहरी एनवायरनमेंट भी आपको होल्ड टू काउंट करते हैं उन बिलीफ्स को बनाए रखने के लिए, उन बिलीफ्स में आगे बढ़ने के लिए। तो कभी अपने कहते हैं ना, अपने आसपास ऐसे लोगों को बनाए रखना जो आपको सच में सपोर्ट करें टू गो फॉरवर्ड इन एनी विच वे, एनीवेज। तो आपने एक बार बिलीफ बनाया, वट एवर यू बिलीव अबाउट योर बॉडी, और बिलीफ कैसे बन रहा है मैंने सारी लंबी डिटेल्स दे दी। योर सेल्फ बिलीव इट टू, वट एवर इट इज। दे डोंट क्वेश्चन एनीथिंग यू थिंक, फील और बिलीव। अगर आप कोई भी चीज सोच रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि आप मरने वाले हो, तो बॉडी कहेगी तथास्तु। अगर आप फील करोगे मैं बीमार हूं, है मेरा क्या होगा, बॉडी कहेगी तथास्तु। अगर आप बिलीव करोगे हाय मेरा, मैं तो मरने वाली हूं तो कुछ नहीं होना, तो बॉडी कहेगी तथास्तु। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल थी मेरी माँ मेरी माँ, मैंने ना जिंदगी की जो भी आज बोल रही हूँ ना, हर चीज का प्रूफ है मेरे पास, प्रूफ। मतलब मेरी माँ को बिल्कुल क्लियर था क्या, कि वो शी वाज अ वेरी इंडिपेंडेंट वुमन, वेरी सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ डिपेंडेंट एंड सेल्फ मतलब काइंड ऑफ वुमन, सेल्फ मेड काइंड ऑफ वुमन। तो उनको ना ऐसा लगता था कि मेरी बॉडी ना बिल्कुल हेल्दी रहनी चाहिए हमेशा, और मेरे को कभी किसी सेवा सुवा वगैरह नहीं करवानी है। मतलब इस तरह के, मतलब जैसे होता है ना ओल्ड एज में लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं एंड ऑल, इवन फाइनेंशियली भी कई बार डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने रिलेटिव्स पे, बच्चों पे एंड ऑल। तो शी सेड कि जब मैं ना, जब मतलब मैं वर्किंग रहना चाहती हूँ, मतलब जैसे कि वो शी वाज इनटू दिल्ली पुलिस, शी वाज अ वर्किंग वुमन। एंड दिल्ली पुलिस को तो अपनी ठाठ होती है, अपनी शान होती है दिल्ली पुलिस में काम करने का। और एंड शी वाज अ वेरी गुड वर्कर, लाइक बहुत बड़े बड़े थाने उन्होंने संभाले हुए हैं। जैसे कि लास्टली आई रिमेंबर शी वाज इनटू प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी। तो प्रेसिडेंट उस समय प्रतिभा पाटिल थी हमारी, एंड शी वाज द सिक्योरिटी हेड ऑफ हर सिक्योरिटी। एंड सिमिलरली जैसे कि अपना थाने संभालना, पीतमपुरा थाना उनके अंडर आता था। तो जो भी वो काम करती थी बहुत बढ़िया रोब से करती थी। तो उनको लगता है मेरी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, रोब वाली। तो यानी कि जब तक मेरी जॉब है ना, तभी तक मैं जीना चाहती हूँ। और मतलब आई डोंट वांट टू बी अ रिटायर्ड समवन, रिटायर्ड ओल्डी जैसे घर में होते नहीं रिटायर्ड, उसको उनको दिमाग में सेट था, उनको पता नहीं क्या थिंकिंग थी, बिलीफ था, क्या था। तो उन्होंने अपने आप अपने सिस्टम में जो भी सिस्टम क्रिएट किया, एंड शी डाइड जस्ट 6 months बिफोर हर रिटायरमेंट तो उससे पहले पहले वो निकल ली बाहर। आप बोलोगे कैसे? अरे हम ही सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। आप बोलोगे अपनी मौत भी, अरे आप अपनी सांसों को कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो। आपके पास सांसें तो बहुत सारी थी, पर आपने जल्दी खर्च कर दी। क्यों? क्योंकि आपकी बिलीफ ने बोला कि अच्छा हमें ये करना है सब।
सांसें तो आपके पास इनफ थी, पर आप अपना सिचुएशन ऐसे क्रिएट कर दी कि वो सांसें जल्दी खर्च हो गई और आपने अपना एंडिंग पॉइंट आगे फ्रंट कर लिया। अब ये कैसे होता है? ये आपके बिलीफ से होता है। अगर आप बिलीव करते हो आप 100 साल जियोगे तो आप 100 साल जियोगे। आप बिलीव करते हो तो जी जाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी सांसें हैं यार, वो एक्सपेंडेबल है, हवा है, हवा एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट दोनों कर सकती है। तो आपकी सांसें ही तुम्हें गहरी गहरी सांसें आनी शुरू हो जाएंगी, आप रिलैक्स रहोगे, हमेशा लंबी लंबी सांसें लेने लग जाओगे। तो ये क्या हो रहा है? अब मैं आपको एक्सट्रीम केस बता रही हूँ जीवन और मौत का, उसके अंदर भी आपकी कुछ लेवल तक तो बिलीफ काम करता है। अब हम शरीर पे आ जाओ, शरीर के ऑर्गन्स पे आ जाओ, आपके रंग रूप पे आ जाओ। ये तो बच्चे हैं इनके सामने, ये तो कुछ भी जो आप कमांड दोगे ये उसको एक्सेप्ट करेंगे। इनफैक्ट दे हियर एवरी थॉट फीलिंग एंड बिलीफ यू हैव। जो भी आप इस समय सोच रहे हो, जो भी आप इस समय फील कर रहे हो, जो भी जिस चीज पे आप विश्वास कर रहे हो, हर चीज उनके लिए कमांड है। आपकी बॉडी है भैया, वो कमांड आपसे तो ले रही है। तो आप कमांड दे क्या रहे हो इस समय? इफ यू थिंक, पढ़े, If you think or say, I always get jet lag when I travel, your cells receive jet lag as a command and they must carry out your instructions. Think and feel that you have a weight problem and your cells receive the order of a weight problem. They must follow your instructions and keep your body in an overweight condition. Be afraid you might catch an illness and your cells receive the message of the illness and they immediately get busy creating the symptoms of the illness. Your cells responding to your every command is simply the law of attraction working inside your body. तो आपके जो भी किसी भी तरह के आपके बॉडी पर रिस्पॉन्स, स्टिमुलस, कुछ भी बिहेवियर, कुछ भी ब्रेकडाउन आ रहा है या कुछ भी हो रहा है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ व्हाट यू आर थिंकिंग, फीलिंग एंड बिलीविंग। मतलब मैं अपनी लाइफ में देखूं तो एक एक चीज उसी का प्रोडक्ट है। अब मेरी मेरी कितनी एफिशिएंसी है अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को चेंज करने की, ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि अगर बिलीव्स बहुत गहरे हैं तो उनको उतना ही टाइम लगता है ऑल्टर होने में। क्यों? क्योंकि अगर मेरा बिलीफ बहुत गहरा है किसी चीज के बारे में, हाँ, या वो बिलीफ चाहे मैंने ताजा ताजा ही एक्वायर किया है, पर मैंने किसी ऐसे से एक्वायर कर लिया जिसपे मेरा बड़ा विश्वास है। देखिए, एक तो आपने अपने विश्वास से चीज बनाई, एक आपने किसी के पास सुन लिया, देख लिया, कुछ कर लिया और उस बंदे पे आपको विश्वास है, तो उस पे विश्वास है और उसकी कही बात पे विश्वास है, तो भी आपके बिलीफ बहुत स्पीड में बनना शुरू हो जाते हैं करंटली, मतलब अभी लाइफ के अंदर भी। तो अपने बचपन के बिलीफ तो आपने कैरी किए ही हुए। जैसे कि सपोज मेरे गुरु पे बड़ा विश्वास है फॉर एग्जाम्पल, और मैंने गुरु ग्रंथ साहब जी में कुछ पढ़ लिया या मैंने कहीं पे कुछ देख लिया या सुन लिया, हाँ, और वो जो भी चीज है, और वो मैं क्योंकि मैं गुरु पे विश्वास करती हूँ तो गुरु के कहे पे भी विश्वास कर लूंगी, या गुरु की उस जो भी उनकी वाली जो एक्सपीरियंस है उस पर विश्वास कर लूंगी। तो ये मेरा रेडीमेड विश्वास फटाफट बन गया और ये भी मेरी बॉडी पे काम कर देगा क्योंकि मैंने उस विश्वास पे विश्वास कर लिया है ना। तो ये विश्वासों की दुनिया है टोटल। तो आप अपने विश्वास बना कैसे रहे हो? ऐसे तो बना रहे हो जो मैंने अभी बोला। तो कुछ पुराने हैं, कुछ नए हैं, कुछ अभी बन रहे हैं, कुछ पहले के बैठे हुए हैं, पर आपकी बॉडी कमांड लेती चली जा रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोरोना आया। अब कोरोना के टाइम पे तो हमारा कोरोना के लिए कोई पुराना विश्वास था नहीं, है ना, क्योंकि तो नई बीमारी थी। पर उस समय जो मेरा वाला सोच था कि भैया जो होना है गुरु के उसमें होना है, मतलब जो भी होना है वो तो मतलब अगर मैं अच्छी हूं तो मैं ठीक ही रहूंगी, मेरे पे मेरे गुरु का हाथ है वगैरह वगैरह। मेरा विश्वास था कि मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी फॉर एग्जाम्पल। तो अगर मेरा विश्वास है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, तो मेरे को विश्वास हो गया ना कि जैसे उस टाइम पे जो मैं प्रैक्टिसेस कर रही थी तो उस समय गुरु मेरे अंग संग है, गुरु मेरी टेक केयर कर रहा है वगैरह वगैरह वगैरह, तो मुझे विश्वास था उसके ऊपर। तो लाइक वट एवर आई वॉज मूविंग अराउंड, मैं मोस्टली बाहर ही रहती थी उस दौरान पे, पूरी दिल्ली पूरा भारत घुमा है मैंने। तो आई वॉज अंडर दिस थिंग, दिस बिलीफ दैट आई एम टेकन केयर ऑफ। अब ये क्या था? अगर मैंने बोला है कि मैं हेल्दी हूँ एंड मेरा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो मेरी बॉडी कह रही है ओके मैं हेल्दी हूँ, मेरा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अगर मैं बोलूं कि हाय मैं डर गई, मर गई मर गई मर गई मर गई, हाय मेरे को देखो उसने नीच मार दी, हाय मैं मर गई मर गई मर गई, उसने नीच मार दी, खांसी कर दी, मेरे को वायरस लग गया, अगर मैंने सोच लिया, मैंने फील कर लिया, मैंने उसको बिलीव कर लिया, तो वो बॉडी कहेगी ओके नीच तूने मार, उसने नीच मारी, तेरे को लग गई तो तेरे को बुखार होगा। तो बॉडी वैसे रिस्पॉन्ड करेगी जैसे कि आप उसको कमांड कर रहे हो, आपका बिलीफ कमांड कर रहा है। आगे, Face towards the perfect image of every organ, and the shadows of disease will never touch you. Robert Collier, New Thought author. या फेस टूवर्ड्स मतलब अपना रुख उस तरफ रखो। कहाँ? जो भी आपकी बॉडी है,
बॉडी का परफेक्ट जो भी इमेज है या परफेक्ट जो भी उसका ऑर्गन है या जो भी उसकी परफेक्ट फंक्शनिंग है, अगर आप हर समय उसी तरफ मुंह रखो, हम ही मुंह मोड़ लेते हैं। हम ऐसा नहीं कि हम शुक्रगुजार नहीं है, पर हम ही मुंह मोड़ के कंप्लेंटें करने लग जाते हैं, हम ही इसको मुंह मोड़ना बोल देते हैं कि हमने ही उस तरफ से मुंह मोड़ लिया अपना। तो आपने मुंह मोड़ा, हाँ, तो अब आपको बस डिजीजेस वो आपको ओवर पावर करेंगी। पर अगर आप हमेशा परफेक्ट इमेज यानी पॉजिटिव यस इमेज की तरफ हमेशा अपना मुंह रखोगे, हमेशा उसी तरफ हाँ, देखोगे, सोचोगे, बिलीव करोगे, तो यू विल ऑलवेज गेट अप बट यू आर लुकिंग एट, ठीक है, क्योंकि आपका मुंह ही उस तरफ है। परंतु आपने मुंह मोड़ा तो फिर पीछे भी खड़े हैं अंधेरे शेडोज ऑफ डिजीजेस, ठीक है जी। तो हम इसी पे आगे बढ़ेंगे। एंड अभी जो हमने जो भी बोला इसकी डिटेलिंग अभी आगे आनी है। सो व्हाट यू वांट एक्चुअली में, आपको चाहिए क्या? आपको अपने शरीर से क्या चाहिए, अपने रंग रूप से क्या चाहिए, अपनी बॉडी से क्या चाहिए? व्हाट यू वांट, व्हाट वुड यू लव? क्या चीज पाने से आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत पॉजिटिविटी होगी? तो यहाँ से गेम शुरू होती है। हमें आपकी बीमारियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें आपके ब्रेकडाउन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारे को इंटरेस्ट सिर्फ ये है कि व्हाट यू वांट, व्हाट वुड यू लव, बिकॉज दैट इज व्हाट यू मस्ट गिव टू योर बॉडी। व्हाई? बिकॉज जिस चीज को प्राप्त करने में आपको आनंद की अनुभूति है, खुशी मिल रही है, आपको अपने शरीर को वही देना है। दैट इज व्हाट यू मस्ट गिव टू योर बॉडी। योर सेल्स आर योर मोस्ट लॉयल सब्जेक्ट्स, मतलब आपके सबसे ज्यादा वफादार, जिनको आप बोल सकते हो, हु सर्व्स यू विदाउट क्वेश्चन। आपके बच्चे भी आपको क्वेश्चन करते हैं, आपके एम्प्लॉयज भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आपकी मेड तक आपको क्वेश्चन कर देती है काम करने या ना करने के लिए। तो मतलब बट आपके इस बॉडी के सेल्स आपके सबसे वफादार साथी होते हैं, who serves you without question. And so whatever you think, whatever you feel, whatever you really believe into becomes the law of your body. आपकी बॉडी आपको कैसी चाहिए, कैसी बनानी है, ये लॉ भी वो आपसे ही ले रही है। लॉ मतलब नियम क्या, उसकी पूरा फंडामेंटल क्या, उसके कॉन्स्टिट्यूशन क्या, सब आप दे रहे हो उसको। चलो शुक्र है कोई तो आपकी सुनता है, आपकी बॉडी ठीक है, आपकी सुनती है। इफ यू वांट टू फील एज गुड एज यू डिड व्हेन यू वर ए चाइल्ड, देन गिव योरसेल्फ दोस कमांड, आई फील अमेजिंग टुडे, वाओ वाओ वाओ। इसके अंदर वो एक नहीं बच्ची की वीडियो थी, वो याद है एनी? तुमने कहीं से ढूंढ के निकाली थी वो, आई एम फेट, वो जो बाथरूम में शेल्फ पे खड़े होकर कुछ बोल रही होती है, वो वीडियोस देखो अगर मिल जाए तो। दैट वाज अमेजिंग वीडियो। मतलब बॉडी को कमांड करने के लिए, अपने सिस्टम को कमांड करने के लिए, हर रोज सुबह खड़े होकर ना बाथरूम में वो ऐसे स्टार्ट करती थी बच्ची। सो आई फील अमेजिंग टुडे, आई हैव सो मच ऑफ एनर्जी, आई फील पावरफुल, आई हैव परफेक्ट आई साइट, मेरी हड्डियां कितनी मजबूत, मेरी हड्डियां बहुत मजबूत हैं, अब मैं जो भी खाना चाहता हूँ, आई कैन ईट वट एवर आई वॉन्ट एंड मेंटेन माई आइडियल वेट। कई लोग ऐसे ऐसे बकवास बातें बोल रहे होते हैं, अरे मैं तो, मेरे को तो हवा भी लग जाती है जी, मैं तो पानी भी पी लूं मेरा वेट बढ़ जाता है, मैं तो मनहूस तो आई कैन ईट वट एवर आई वॉन्ट टू एंड आई मेंटेन माई आइडियल वेट, आई स्लीप लाइक अ बेबी एवरी नाइट। अगर आपको नींद अच्छी चाहिए तो मतलब जस्ट कीप स्पीकिंग इट, यू आर द रूलर ऑफ अ किंगडम and whatever you think and feel becomes the law of your kingdom. So welcome to the kingdom of your own self, the law within your body. इस साम्राज्य के आप मालिक हो। यहाँ पर आप बाहर की दुनिया में जो मर्जी बकवासे कर सकते हो, क्या कि वो मेरा बॉस ऐसा है, मेरा सप्लायर ऐसा है, मेरा क्लाइंट ऐसा है, पैसा की पेमेंटें नहीं आ रही, मेरी बीवी ऐसी है, मेरा पति ऐसा है, रिलेशनशिप नहीं चल रहा, मेरे माँ ऐसी है, मेरे सास ऐसे है, मेरा बाप ऐसा है, जितनी बकवासे कर सकते हो कर ली। अब तुम अपने शरीर पे आ चुके हो मेरी जान, इस शरीर के लिए तो कोई बहाना भी नहीं बचेगा, अब इस शरीर के लिए बहाना नहीं बचेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपका राज चलता है। द लॉ विद इन योर बॉडी, दैट्स योर किंगडम, बट डू यू नो दिस योर किंगडम एंड यू आर द किंग ऑफ दिस किंगडम। तो चलो कल हम आगे बढ़ेंगे कि यू आर द रूलर एंड हाउ टू सेट द रूल्स फॉर योर किंगडम। तो क्या रूल्स होने चाहिए, कैसे अपने किंगडम को आप कॉन्कर कर सकते हो, जो अभी किसी और ने हड़पा हुआ है ऑब्वियसली तो कैसे आप इसके राज को वापस अपने अपने अपनी मुट्ठी में लोगे। तो चलो बात करते हैं इसके बारे में आगे बढ़ते बढ़ते। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन दिस सेशन, आई होप today's session was of some use to you. Thank you very much for your participation. Thank you very much Anjali for all your support. Thank you very much. So thank you and let's just begin. This is one of अब आगे वाले दो चैप्टर इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आई नो दैट, पर ये वाला चैप्टर जिसने समझ लिया और जिसने इसको मास्टर कर लिया, तो शरीर को मास्टर कर लेना, शरीर के अंदर अपने किंगडम को मास्टर कर लेना, दैट्स, अगर आपने ये मास्टर नहीं किया तो फिर आगे वाली जर्नी तो अलग ही जर्नी है, जो अगले तो चैप्टर्स आने वाले हैं। तो एनीवेज, तो आप बाहर की जर्नी को भी मास्टर करना, बाहर की दुनिया में पैसों की दुनिया, रिश्तों की दुनिया को, अपने करियर को, अपने बिजनेस को मास्टर करना, फिर शरीर को मास्टर करना। एंड राइट नाउ वी आर लर्निंग द रूल्स ऑफ दिस किंगडम। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन दिस ब्यूटीफुल जर्नी एंड
this journey is amazing. मतलब I don't have even words. Sometimes I prefer to stay okay quiet, क्योंकि इतने एग्जांपल्स होते हैं लाइफ के अंदर, इतने एग्जांपल्स होते हैं कि जब मैं क्वाइट क्यों होती हूँ, बिकॉज मेरे को लगता है कि अच्छा तू चुप रहे, हाँ चुप रहे, अभी तो नहीं कर रही ना। मतलब कि लाइफ में कभी कभी तो ये हुए हैं मेरे से, क्योंकि ये हुए हैं तभी मेरे को विश्वास है कि ये काम ऐसे ही करता है, काम तो ये ऐसे ही करते हैं। पर कई कई पर जगहों पे मैंने देखा कि जहां पर आई वॉज द रूलर ऑफ माई किंगडम, बट स्टिल आई लॉस्ट माई रूल, आई कुडंट, I was not in experience of being the ruler. I was rather being a slave of my body. I was rather overpowered. Like कि ये बॉडी मैं नहीं चला रही, ये बॉडी कोई और चला रहा है। तो वो वाले मोमेंट्स भी मैंने एक्सपीरियंस करे अपनी लाइफ के अंदर। एंड देन अभी भी जैसे कई बार मैं चलाती हूँ, कई बार कोई और चलाता है। जब कोई और चलाता है तो यानी कि मैंने अपना रूल कहीं ना कहीं पे लूजन अप किया है ना। तो वो मैंने क्यों लूजन अप किया, क्या किया है मैंने ऐसा। तो नाउ स्टिल दैट इज अ प्रैक्टिस आई एम अंडरगोइंग राइट नाउ। तो अभी आगे बुक में हम पढ़ेंगे कि क्या 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 कैसे कैसे क्यों 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 तो हम बुक में चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन दिस जर्नी विद ऑल ऑफ अस। थैंक यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन, थैंक यू फॉर योर space for us, all of us, to actually get into this realm and understand the beauty of this beautiful kingdom. So thank you very much. Are we ready with the assignment? Yes, thank you for the amazing, wonderful session. And आज के सेशन में तो ऐसा लगा कि बॉडी के अंदर एक महाभारत चल रही है। एंड आप एक महाभारत में आपके पास एक बहुत सारे लीडर सेल्स हैं, जो 5 पांडव हैं, एंड यू आर द कृष्ण जी, जो आप सबको लीड कर रहे हो कि कैसे कैसे क्या करना है। एंड सो आज की असाइनमेंट, द नंबर 1 असाइनमेंट विल बी टू बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द ऑर्गन्स। आज सब एक इंटरनेट से सारे ऑर्गन्स की लिस्ट निकालेंगे एंड हर एक ऑर्गन पे ग्रैटिट्यूड लिखेंगे। एंड सेकेंड असाइनमेंट विल बी टू राइट व्हाट डू यू वांट एंड व्हाट डू यू लव अबाउट योर बॉडी। एक्चुअली आपको बॉडी में आपका गोल क्या है, वांट क्या है, एंड उसको फिर जो भी हम एक बार सारी वांट्स को लिस्ट करेंगे एंड उनका फिर एक एफर्मेशन बनाएंगे, लाइक अ शॉर्ट फॉर्म, जो पूरे दिन आपको एक रिपीट करते रहना। बस ये। हाँ जी। Thank you very much. So as we go further in the chapter, जो अभी हमने बात करी है, ये आगे बढ़ते बढ़ते असाइनमेंट्स आने ही हैं। तो अभी आपने बस ये देखना है कि हाँ पहले अपनी बॉडी के अंदर, जैसे कि हमने बोला, अभी फिलहाल अब डिपेंड करता है आपकी बॉडी में क्या इस समय सिचुएशन है। तो यू मे फील के अंदर जंग छिड़ी हुई है, अंदर महाभारत छिड़ी हुई है। मतलब अगर सिस्टम में बहुत ज्यादा उथल पुथल चल रही है, बहुत ज्यादा मारधाड़ चल रही है, बहुत ज्यादा अनरेस्ट चल रहा है, तो यू मे फील दैट एंड यू कैन राइट डाउन कि कौन कौन से एरियाज में ब्रेकडाउन्स हैं। ओके, अपने लिए, सिर्फ अपने लिखना, हमें बताने की जरूरत नहीं है। जहां पे भी आपको ब्रेकडाउन फील होता है, ताकि पता तो रहना चाहिए कौन कौन से ऑर्गन्स, कौन कौन से रीजंस इस समय रेड अलर्ट कर रहे हैं, आपको रेड अलर्ट कर रहे हैं। तो आपको जब अभी ग्रैटिट्यूड करना है, ये तो आगे चैप्टर बताएगा, पर इट्स ओके अगर आप करना चाहते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम द मैजिक बुक, आई अज्यूम। ठीक है, पर कई लोग मैजिक बुक से नहीं भी आए हैं। कितने लोग तो ऐसे हैं जो अभी 4-5 दिन पहले, 6 दिन पहले पावर बुक में आए। कहाँ से आ रहे हो, कहाँ, कौन से देश से, कौन देश से आए रे गुजरिया, कहाँ से आ रहे हो कहाँ, यहाँ पे कोई क्या ज्ञान बट रहा है, यहाँ पे क्या खिचड़ी बट रही है, लंगर बट रहा है, कोई भी कभी भी एंटर किया जा रहा है। ऐसे नहीं होते हैं, ये बुक्स होती हैं। जितने भी न्यू कमर्स हैं, सुन लो जरा कान खोलकर, ये पावर बुक है। पावर बुक इज एन एडवांस वर्जन ऑफ मैजिक। ओके, अगर आपने मैजिक बुक नहीं करी तो यहाँ पर बैठ के अपना टाइम पास मत करो। आधी बातें समझ आ रही होंगी, आधी समझ नहीं आ रही होंगी, फिर सोचोगे मैडम तो ये बोला था, उसने तो ये बोला था। ऐसे हम आपकी गारंटी क्यों लेंगे भला। तो और जो बिल्कुल शुरू से पावर बुक में नहीं है, वो तो भैया हाथ जुड़वा लो और निकलो यहाँ से बाहर। जो शुरू से डे 1 से पावर बुक में नहीं है, ये क्या कोई चित्रहार थोड़ी ना चल रहा है, कभी कोई गाना सुन लिया, कभी कोई गाना सुन लिया, एंटरटेनमेंट हो रही है तुम्हारी। तो दिस इज अ कमिटेड बुक। हाँ, वो अलग बात है, हमने फीस नहीं ली इस बार, फिर भी आई अज्यूम यू पीपल आर कमिटेड। तो दिस इज कमिटेड बुक। काफी मैंने सुना लोग अभी 10 दिन पहले जुड़ रहे हैं, तुमने भी सुना अंजलि ऐसे? हमने 2 दिन पहले कहीं से पावर बुक में आ गए। भाई पावर बुक ये कोर्स बुक है, ये कोई चिट चैट स्टेशन नहीं है। ओके, तो आपको या तो स्टार्टिंग से करनी है, जैसे कि आज हम जो बातें कर रहे हैं, जिसने पावर बुक के इनिशियल्स करे ही नहीं है, जो शुरू के चैप्टर पढ़े ही नहीं है, तो उसको आज वाला समझ आ जाएगा। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री, यस नो? तो अपने पे दया करो, मतलब अपने पे दया करो जो नए लोग हैं, प्लीज। ओके, तो आपको ये, आपने एबीसीडी नहीं सीखी है तो आज आप इसके ऊपर नहीं आ सकते, ये जो भी इंसाइक्लोपीडिया चल रहा है।
तो अपने आप को बाहर करो इस चैप्टर से, पहले जाइए, मैजिक बुक स्टार्ट हो रही होगी किसी ना किसी जोन के अंदर, किसी ना किसी लिंक के ऊपर, पहले मैजिक बुक कीजिए आराम से, ग्रेटिट्यूड से। आज तो होमवर्क इन्होंने बोल दिया कि पहले अपनी जिंदगी में देखो कहाँ का ऑर्गन्स में क्या, और उन ऑर्गन्स का ग्रेटिट्यूड करना, पर आपको पता ही नहीं है तो फिर क्या टाइम पास कर रहे हो यहाँ पर। तो एनीवेज, तो मेरा काम है आपको अलर्ट करना, आगे आपकी आपकी अपनी जिंदगी आप संभालो। तो ओके फाइन, तो ये होमवर्क के अंदर आपने पहले अपने ब्रेकडाउन्स देख लिए। ओके, अब ग्रेटिट्यूड करना है, कर लो। वैसे भी पूरी बॉडी का ग्रेटिट्यूड तो सिर से लेकर पांव तक करना ही चाहिए। एनी भी अगर आती है, हमारे 10 o'clock सेशन में भी होता है, 8:30 पे भी होता है, कई बार 2 बजे वाले में भी हम इंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि ये तो हर समय काम कर रही है, इसका जितना शुक्राना कर लो उतना कम है। इतना इतना ज्यादा हमारा इसके लिए ड्यू है, जो भी ड्यू होता है। तो कीप डूइंग दैट एंड देन राइट डाउन व्हाट यू वांट। अपने सिर से लेके पांव तक हर एक अंग के लिए आपके आपके पास एक लिस्ट रेडी होनी चाहिए। कि लिस्ट आपको पता तो होना चाहिए, आपकी आंखों के लिए आपकी चाहत क्या है, आपके कानों के लिए आपकी चाहत क्या है, आपके दांतों के लिए आपकी चाहत क्या है, आपके शरीर के वेट के लिए आपकी चाहत क्या है, आपके इंचेस के लिए आपकी चाहत क्या है। मतलब कि मैं बता रही हूँ, व्हेन आई यूज्ड टू वर्क, मैं एक्चुअली में इंची टेप लेके काम करती थी उस टाइम के ऊपर, कि लाइक दिस इज व्हाट इट इज राइट नाउ एंड दिस इज व्हाट आई वांट। ये नहीं कि ऐसा हो जाए, मतलब मेरे को दिख रहा है कि उस वाले फलाने कोई एक्ट्रेस है या कोई कोई भी मॉडल है जिसको मेरे को जो मुझे अच्छी लगती थी, पसंद है, नंबर एक मैं दिल से उसको अप्रिशिएट कर रही हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ एनी जेलसी, नॉट बिकॉज ऑफ एनी कॉम्पिटिशन, नॉट बिकॉज ऑफ एनी, मतलब आई रियली अप्रिशिएट यार, रियली अप्रिशिएट जो भी उसने अपने लिए क्रिएट किया है। तो एंड वंस आई अप्रिशिएट एंड इफ आई फील आई आल्सो वांट टू एंजॉय दैट ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ दैट काइंड ऑफ व्हाटएवर दैट फिजिकल एट्रीब्यूट्स आर, तो एग्जैक्टली मुझे पता होते थे कि अगर मेरे अभी सपोज इंचेस इतने हैं तो मेरे को कितना बनाना है। और अगर आपको एग्जैक्टली पता है लिस्ट के अंदर कि दिस इज व्हाट योर आई साइट इज, दिस इज व्हाट यू वांट, है ना, दिस इज व्हाट माय हार्ट बीट इज, दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज व्हाट माय शुगर लेवल इज, दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज व्हाट माय बीपी इज, दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज जो भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स की परफॉर्मेंस का भी आइडियल स्टेटस आपको ही पता होगा ना। तो आज वो दिन है जिसमें आपने अपने आइडियल स्टेटस को लिखना है। ओके, और आपको आइडियल स्टेटस बनाने के लिए अपना करंट स्टेटस तो पता होना चाहिए ना। अगर अभी अभी मेरा वेट सपोज इतना है, फॉर एग्जांपल मेरा वेट है वो फॉर एग्जांपल 80 kgs, और मुझे पता है कि ओके दिस इज माय करंट स्टेटस 80 kgs एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू बी 65, तो फाइन, ओके लिखो। तो अपना अपना फ्रंट अभी करंट का तो आपको पता होना चाहिए, चाहे वो भी स्टेटस, चाहे वो ब्रेक थ्रू है चाहे ब्रेक डाउन है, पर आपको पता होना चाहिए करंट में ये चल रहा है, मेरे हार्ट में ये चल रहा है, मेरे किडनी में ये चल रहा है, मेरे फलाने में ये चल रहा है। अगर आपके कोई पत्थर पुत्थर अंदर आपने रखे हुए हैं, पता नहीं कैसे पहुंच जाते हैं, तो जो भी वो भगवान जी की कृपा है, सब स्वस्थ रहे, सबके पेट सबकी आंतड़ियां सब बहुत स्वस्थ रहे, हमें स्वस्थ रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पर जिसके भी अगर हो गया तो वो पहले लिख लो कि हाँ ये ब्रेक डाउन है, और मेरे को यहाँ पर ये ब्रेक थ्रू कॉज करना है। This is my ideal. This is what I want, love. This is what I want. So thank you very much for creating that assignment for yourself and do it. Let's do it. और जिन लोगों ने नहीं करा, मैं आपको बता रही हूँ, 2 से 5 में मैंने परसों वाली करा था, रिपीट पे चलाया था जो देखिए ये मार्च मैनिफेस्टेशन मंथ था जो हमने मैजिकली स्टार्ट किया था, बट ये तब तक चलेगा जब तक कि ये बुक चलेगी। तो मैंने मतलब कल ही क्लियर कर दिया था, ये नहीं कि मार्च खत्म तो वो खत्म हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, वो मैंने एनी को बोल दिया, आई हैव इंस्ट्रक्टेड हर कि जब तक ये बुक चल रही है तब तक ये आपको प्रैक्टिसेस जारी रखनी है, कंटिन्यू रखनी है। तो यू नीड नॉट टू पे एनीथिंग एक्स्ट्रा फॉर दैट, इट विल बी कंटिन्यूड। तो जो लोग हेल्थ के लिए अभी एंटर कर रहे हैं, हेल्थ के लिए मैं बता रही हूँ बहुत जरूरी होता है हेल्थ के लिए। आप अपने आप जितना भी कर लो, आपको हेल्थ के लिए आप ये सोचो कि अगर आप एक फिजियोथेरेपी पे जा रहे हो, डॉक्टर मैं हमारे यहाँ पे एचसी गुप्ता वही 700 रुपए, 500 700 ऐसे, तो आप कंसल्टेशन के लिए भी तो पैसे देते ही हो ना। बट अगर आपकी कमिटमेंट क्यों बनती है डॉक्टर के साथ, किसी फिजियोथेरेपिस्ट के साथ, किसी भी ट्रीटमेंट के, आप दवाइयां भी लेने जाते हो 1000 रुपए का, तो दवाइयों का बिल ही आ जाता है आपका। तो अपने शुक्रानों के ऊपर, अपने कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड्स के ऊपर आपको टाइम और पैसा और एनर्जी लगाने में, अगर अगर अभी भी सोच आ रही है कि आपको ये वेट चाहिए, पर वो वेट आप इतने सालों से सोच रहे हो पर आपको नहीं मिल रहा, पर अभी जब आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो, इस चैप्टर के असाइनमेंट्स को डिटेल में आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बैठ के करोगे, तो आपको खुद ब खुद रिजल्ट्स भी फास्ट होने शुरू हो जाते हैं। जिन जिन लोगों को फास्ट रिजल्ट आ रहे हैं इस समय, जो शुरू में शेयरिंग कर रहे थे, क्योंकि उनकी प्रैक्टिसेस बहुत जबरदस्त हैं। अगर आपकी प्रैक्टिसेस जबरदस्त नहीं है तभी आपके रिजल्ट्स रुके हुए हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। कुछ स्ट्रक्चर बनाओ तो खुद से करो, नहीं तो ग्रुप में एंटर करो, ताकि आपके स्ट्रक्चर्स आपको रिजल्ट्स देना शुरू करें। आपके बाल गिर रहे हैं, जाके आप 1500 रुपए का शैम्पू खरीद लाते हो 2 मिनट के अंदर, हाँ 1500 रुपए का स्पा करा आते हो, 1500 रुपए, मतलब कभी सोचा तुम्हारा दिमाग कितना दोगला है?
आज तुम्हारे को अपने ग्रेटिट्यूड पे काम करना है, अपनी रोशनी पे काम करना है, अपने इंटरनल बीइंग पे काम करना है, तो उसके ऊपर अगर शैम्पू खरीदने के लिए 1500 रुपये लगाएगा तो कोई बात नहीं, 2 मिनट में खरीद लो। हाँ, पर अपने आप को अंदर से रोशन करना है, अपने आप को ग्रेटिट्यूड में प्रैक्टिस में बना के रखना है। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटे, कितने भी ऑप्शन मिल रही है आपको कि इतने घंटों तक भी आप अपने आप को परमानेंटली अंदर से स्वस्थ कर सकते हो, परमानेंटली अंदर से पावर में ला सकते हो। करना क्या है, टाइम निकालना है यार, बस खाली टाइम निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है कि हाँ मुझे करना है। शुरू शुरू में थोड़ा सा लगेगा आपको करना, पर एक बार करोगे, कितने लोगों को करने के बाद इंटरेस्ट आना शुरू हो गया, पता भी नहीं चलता कब 3 घंटा गायब हो जाए, कब आपके 2 घंटे 3 घंटे कब आपके बीत जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है ना। और आपको मजा आता है, मतलब यू रियली एंजॉय बिकॉज दिस इज हु यू आर, यू लव टू बी इन अ पॉजिटिव एनर्जी। और कितने लोगों को रिजल्ट्स आने शुरू हो गए, जैसे कल कोई शेयर कर रहा था ग्रुप में कि उसको यूएस में जॉब चाहिए था, उसको वो इतने टाइम से नहीं मिल रही थी, उसने वो 3 घंटे में बैठ के कॉन्सेंट्रेटेड किया, उसको यूएस में जॉब मिल गई। किसी ने कुछ और लिखा, पता नहीं क्या क्या, मैं पढ़ नहीं पाती, आई एम सो सॉरी, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स एक्टिव है इस समय, तो पर एक दो पर नजर चली जाती है। तो मतलब आपने सिर्फ 10-15 दिन अपने आप को बस टाइम दिया कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड करने के लिए, और आपकी जिंदगी के अंदर कितनी सारी पॉजिटिव गुड न्यूज आनी शुरू हो गई। कितने लोगों की जिंदगी में गुड न्यूज आनी शुरू हुई कि आपने कुछ टाइम बस अपना बढ़ा दिया, और अगर खुद नहीं कर पा रहे तो आप एक स्ट्रक्चर में चले गए, जैसे कि एमएमएम का स्ट्रक्चर चल रहा है जो अभी एनी और हम सब लोग मिलकर चला रहे हैं, कि आपकी लाइफ में गुड न्यूज आनी शुरू हो गई हैं। जस्ट राइट गुड न्यूज, कुछ भी गुड न्यूज हो सकती है, प्रोफेशनल, पैसों में, रिश्तों में, बॉडी में, जो भी है। तो फिर क्या वेट कर रहे हो यार, टाइम निकाल लो। ठीक है, चलो, ओके, बाय, टाटा। मेरा मेरा काम है इन्फॉर्म करना आगे, क्योंकि आप हेल्थ के चैप्टर में आ गए हो, यहाँ पे तो पक्का टाइम चाहिए ही होगा आपको, 100% चाहिए होगा। और आज का असाइनमेंट करना है ना सबने, ठीक है, तो लेट्स डू फुल ग्रेटिट्यूड ऑफ हेड टू टू, हर हर एक बॉडी पार्ट का, ठीक है। नहीं तो सामने बॉडी पार्ट की एक फोटो डाल देना ग्रुप में, बॉडी पार्ट्स का, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स और इंटरनल बॉडी पार्ट्स, ताकि आपकी नजरों के सामने रहे। कुछ तो हमें ही नहीं पता होता इसके नाम क्या है, तो अंदर अंदर कई चीजें ऐसी होती हैं ना, तो जस्ट लुक एट द नेम, लुक एट द फंक्शन एंड बी ग्रेटफुल फॉर whatever they're doing for you. Thank you very much for being in this journey. Love you all. See you tomorrow. Any question before we sign off? जी मैम, एक ही क्वेश्चन आया है। अगर हम बीमार होते हैं वो हमारा बिलीफ है, लेकिन बच्चे क्यों बीमार होते हैं? वही तुम्हारा बिलीफ तो उनपे भी जा रहा है ना, माँ बाप और किस लिए मनूसो। तुम्हारे बिलीफ तुमने अपने अपने जैसे हम अपनी दुआएं लोगों तक पहुंचा देते हैं ना, अगर हमारी दुआओं की इतनी क्वांटिटी बढ़ जाए कि हम दुआएं अपने लिए तो काम करेंगे नहीं, तो तब वैसे तुम्हारी बददुआएं भी जो होती है ना, नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं उसको, आपने देनी होती है नेगेटिव एनर्जी। जितनी आप इतनी चिंता करते हो, इतनी चिंता करते हो कि चिंताएं भी पास ऑन कर दी बच्चों को। अभी मैं इस टॉपिक पे नहीं जाऊंगी, बहुत ही वाहियात टॉपिक है। अपने अपने पहले अपनी बॉडी पे काम करो, ठीक है, क्योंकि इस पे मैं गई ना तो कई लोगों के रोने निकल जाएंगे कि तुमने अपने बच्चों को क्या क्या मनहूसियत पास ऑन करी हुई। रोने क्या मतलब, लोगों के मतलब मत खुलवाओ ये चैप्टर। मैं प्यार से तमीज से सिखाती हूँ, तमीज से सीख लिया करो, वरना मतलब तुम्हें पता चलेगा कि कैसे माँ बाप को क्यों हम भगवान का दर्जा देते हैं इस देश के अंदर, क्योंकि हम एक्चुअली में हैं। बार बार अपने आपको रिमाइंडर में लाना पड़ता है कि हमारा काम है दुआएं देना, कि बच्चे के स्वास्थ्य को दुआएं देना, बच्चे के अगर बच्चे को कोई एक्सटर्नल अटैक आ भी गया तो भी हम अपनी एनर्जी पास ऑन कर सकते हैं। पर आप एनर्जी पास ऑन करोगे कैसे, आप तो खुद ही मनहूस हो, आप तो खुद नेगेटिव एनर्जी के पुंज हो, तो उसको कैसे पास ऑन करोगे। आप तो उसकी सेवा भी करो डर डर के, चिंता कर करके, पर अपने आप को उस विश्वास में लेकर आना पहले कि हाँ सब कुछ ठीक है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, यस एनर्जी में आना, फिर उस यस एनर्जी को पास करना। तो यहाँ पे जो हम बातें करेंगे ना, सिर्फ वो उसकी करेंगे जो यहाँ पे इस चैप्टर में आया हुआ है अपने लिए। सरिता जी, इज इट क्लियर? यस मैम, मेरे को अपने डन। टाइम की बहुत कदर है और मुझे अपनी जिंदगी की बहुत कदर है, तो आई विल वर्क ओनली ऑन द पर्सन हु इज कमिंग इन द जिम, और बाकी जितने भी क्वेश्चन है सब नॉनसेंस क्वेश्चंस होते हैं until unless the book tells us to work on it. Is it clear? यस मैम, ईश जी अपने का ऊपर काम क्वेश्चन है करो। मैम, हाँ, हो ईश गया। जी क्वेश्चन पूछना चाहते हाँ हाँ, नहीं भाई। एक बुक में लाइन आई थी कि द पर्पस ऑफ द सेल्स इज टू मेंटेन लाइफ एंड हेल्थ इन द बॉडी। हम्म सो आई माय क्वेश्चन इज कि जैसे हमारा एक लाइफ पर्पस होता है, तो ऐसा भी कोई लिंकेज होता है कि इफ आवर्स वी आर वेरी स्ट्रांग एंड वी हैव अ वेरी स्ट्रांग पर्पस एंड वी फॉलोइंग इट इन द लाइफ, एंड उतना ही स्ट्रांग सेल्स का पर्पस भी वो फॉलो होगा, कोई लिंकेज भी होता है इसके बीच में? द स्ट्रॉन्गर आवर पर्पस, द स्ट्रॉन्गर देयर पर्पस। सी नंबर एक, पहले बॉडी को बॉडी के लेवल पे समझना जरूरी है, क्योंकि अगर हम कोई भी एक्सटर्नल चीज इस समय ज्वाइन करेंगे, क्योंकि वो उसके ऊपर से बनेगी,
हमने जो भी अपना बिलीफ बनाया, पर्पस बनाया, विजन बनाया, गोल बनाया, जो भी अपना जो भी बनाया, पर वो पर्पस ऑफ लाइफ, पहले लाइफ कौन है पहले उसको समझो ना। लाइफ तो बॉडी है, बॉडी के अंदर लाइफ है ना। तो आपने जब सबसे पहले आप जब धरती पे आए, आप सिर्फ एक लाइट हो। अब लाइट के ऊपर धीरे धीरे हार्ट बना, हार्ट के ऊपर बॉडी बना, बॉडी 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 बॉडी। तो सबसे पहले तो उस लाइफ, जो ओरिजिनल लाइफ जो लाइट थी, उसके ऊपर बॉडी बना। तो आपने बॉडी बना, अब बॉडी बाहर आया, हाँ बाहर आकर इस धरती के ऊपर उसका कोई ना कोई पर्पस तो है, पर्पस ऑफ लाइफ है। अब पर्पस ऑफ लाइफ मतलब जीवन का उद्देश्य है, पर जीवन कौन है पहले जीवन को तो समझो। जीवन तो वो लाइट है एक्चुअली में, पर उस लाइट की फर्स्ट कवरिंग बॉडी है, फिर बॉडी की नेक्स्ट कवरिंग जो है, ये बॉडी हमें क्यों मिली है, उस लाइट को ये बॉडी क्यों मिली है, उस पर्पस ऑफ लाइफ को अकम्प्लिश करने के लिए। तो ये बॉडी क्या है, ये बॉडी वो चैनल है, वो जरिया है, जिसकी वजह से आप उस पर्पस ऑफ लाइफ तक पहुंच पाओगे। यू कांट रीच इट विदाउट दिस बॉडी। ओके ओके, एंड देन दिस बॉडी हैज इट्स फंक्शन, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं इंटरनल फंक्शन, बॉडी फंक्शन वगैरह वगैरह। उसी तरह से जब आप अंदर के फंक्शंस को धीरे धीरे मास्टर करोगे, इनको समझ जाओगे, आपको पता चलेगा एक दिन कि अगर आपने अपने हार्ट फंक्शन को मेंटेन किया, किडनी फंक्शन को मेंटेन किया, अपने दिमाग के फंक्शन को मेंटेन किया, जो भी आप अंदर से अपने फंक्शंस को आप मास्टर कर रहे हो इन अ गुड हार्मनी पॉजिटिव स्टेटस में, यही वो फंक्शंस है जो बाहर के आपके फाइनेंसेस को मैनेज कर रहे हैं, जो आपके बाहर की पॉपुलैरिटी को मैनेज कर रहे हैं, जो आपके बाहर के पॉलिटिकल इमेजेस को मैनेज कर रहे हैं। आप हैरान हो जाओगे कि यही फंक्शंस जो अंदर काम कर रहे हैं। जब हम कहते हैं कि ग्रह नक्षत्र, जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात भी करते हैं, तो वो सब कुछ भी हमारे अंदर ही है। जब वो सब कुछ हमारे अंदर है, तो बाहर के ग्राहक, बाहर के पैसे, बाहर के ये फेम, पॉपुलैरिटी, तो ये भी तो अंदर ही हुई ना फिर। पर वो काम क्यों नहीं कर रही है वैसे जैसे कि हम चाहते हैं? क्यों? क्योंकि हमारा अपनी बॉडी के ऊपर भी, इस किंगडम पे हम रूलर ही नहीं है ना। हम जब इसके मास्टर नहीं है, तो हम बाहर की दुनिया को मास्टरी कैसे कर सकते हैं? लोगों को लगता है शरीर को हम इग्नोर कर दें, पर हम अपने बिजनेस में प्रॉफिट्स ले आए। आप जो भी बिजनेस में प्रॉफिट्स ला रहे होगे ना, जितने हद तक आपने अपने शरीर को इग्नोर किया, सपोज शरीर की कैपेसिटी इस समय 90 की है, पर आपने इग्नोर करके उसको 10 की कैपेसिटी पे काम करा रहे हो, तो आपको क्या लग रहा है बाहर जो आप 10 करोड़ कमा रहे हो, ये आपकी कैपेसिटी है? नहीं, आपकी कैपेसिटी 90 करोड़ की थी। 90 करोड़ की कैपेसिटी थी, आप इस समय 10 करोड़ पे हो। क्यों? क्योंकि आपका शरीर एग्जैक्टली जो अंदर है वही बाहर है, जो बाहर है वही अंदर है। कई बार लोगों को लगता है बाहर देखो, मैंने शरीर को कोई टाइम नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तब भी देखो मेरी बाहर की जिंदगी अच्छी है। नहीं, जो तेको अच्छी दिख रही है ना, ये उस बेस्ट वाले का सिर्फ उतना ही वर्जन है, परसेंटेज, जो तू इस समय शरीर को अपना अंदर की तरफ जो तू यस एनर्जी दे रहा है। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, कि एवरीथिंग बिगिंस विद योर सोल, बट सोल हैज इट्स बॉडी, और ये बॉडी इस सोल को इसके पर्पस तक पहुंचाने के लिए लेके जाएगी। पर आपने बॉडी को क्या देना है, कैसे करना है, आपकी बॉडी को किस एफिशिएंसी तक लेके आना है, ये आपकी मेंटल गेम है सारी की सारी। ये माइंड गेम आ जाएगी, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो माइंड गेम आपसे करवाएगा, ये बॉडी अपने आप नहीं करेगी। ये बॉडी तो कुछ नहीं है, बॉडी तो सिर्फ कमांड लेगी ना। बॉडी देखिए, आपको बॉडी मिली है इसलिए ताकि आप पर्पस ऑफ लाइफ को अकम्प्लिश करो, पर आप क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि माइंड कहीं और जा रहा है। माइंड कहीं और जा रहा है, वो उस समय बॉडी के फेवर में थोड़ी ना है। आपको पता है कि ये नहीं खाना, ये खाने से मेरी बॉडी को फायदा नहीं है, फिर भी हम खा रहे होते हैं। आपको पता है ये नहीं करना, इससे मेरी बॉडी की एफिशिएंसी नहीं बढ़ रही है, फिर भी आप कर रहे होते हो। तो जैसे जैसे जो लोग माइंड को कंट्रोल करते चले जाते हैं, जैसे आई हैव सीन सो मेनी पीपल जो अपनी बॉडी को मास्टर कर लेते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल रेल्म में, चाहे फिजिकल रेल्म में, जैसे भी करके, क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को मास्टर कर लिया। वो माइंड को एक इंस्ट्रक्शन देते हैं और उस पर टिके रहते हैं, फिर काम कराते हैं, और बॉडी की भी वेलनेस पे काम करते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये है कि क्या पर्पस ऑफ लाइफ भी हमारा बड़ा या पर्पस ऑफ लाइफ कभी बड़ा या छोटा नहीं होता। कोई भी पर्पस ऑफ लाइफ, जैसे कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता ना, पर्पस ऑफ लाइफ भी बड़ा या छोटा नहीं, या स्ट्रॉन्ग या वीक नहीं हो सकता। क्यों? आपका पर्पस ऑफ लाइफ आपका ही है, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ मेरा ही है। मैं आपका वाला नहीं ले सकती, आप मेरा वाला नहीं ले सकते हो। तो वीक, हमारा कंपैरिजन है ही नहीं ना पर्पस ऑफ लाइफ में, तो स्ट्रॉन्ग या वीक तो हम बोल ही नहीं सकते। पर्पस ऑफ लाइफ तो पर्पस ऑफ लाइफ है। अब अगर आपका पर्पस ऑफ लाइफ ही यही है कि आपको दुनिया को ये करना है, तो ठीक है। अगर आपका पर्पस ऑफ लाइफ ही ये है कि आपने मोहल्ले के लिए करना है, ठीक है। आपका पर्पस ऑफ लाइफ ही ये है कि आपने अपनी फैमिली के लिए करना है, ठीक है, क्योंकि वही आपका पर्पस ऑफ लाइफ है। सो जो आपका क्वेश्चन था कि बॉडी की लाइफ, बॉडी का स्ट्रेंथ, और पर्पस ऑफ लाइफ, और पर्पस ऑफ लाइफ का स्ट्रेंथ, क्वेश्चन ये था ना आपका? लिंकेज उनके बीच में। लिंकेज मतलब आप अपना पर्पस ऑफ लाइफ आप डिसाइड नहीं कर रहे हो ना। जी जैसे अगर आपने सीक्रेट मूवी देखा, वो बाहर कहीं नहीं लिखा हुआ, वो अंदर बैठी कोई आपकी लाइट है। उस लाइट, वो लाइट देखिए, मोटा मोटा आप धरती पे आए हो,
जी आपकी लाइट है, वो तो पता है ना, द लाइट सोल है। तो मोटा मोटा पर्पस ऑफ लाइफ यही है कि सोल को, उस लाइट को, जैसे उस आत्मा को परमात्मा तक पहुंचना है। या उसके बीच में कई स्टेजेस होंगी, आप अभी अपने घर फैमिली की स्टेजेस क्रॉस करोगे, फिर आप अपने जीवन की स्टेज क्रॉस करोगे, फिर आप शायद स्वर्गों की स्टेजेस भी क्रॉस करोगे, जो बाहर भी आएंगे, आपकी कई स्टेजेस आती हैं आफ्टर आफ्टर द धरती का लेवल, उसके बाहर भी तो स्वर्ग आएंगे ना। तो कई स्टेजेस आप क्रॉस करोगे, बट इस सोल का पर्पस, फाइनल पर्पस ये है कि सोल की मीटिंग होनी है विद द सुप्रीम सोल। अब वो पर्पस है, हाँ, पर मैं क्यों नहीं पहुंच पा रही वहां तक फिर? क्योंकि मेरी जो ये लाइट है ये प्योर नहीं है, इसके अंदर कुछ ना कुछ कुछ कालापन है, कुछ इसमें इम्प्योरिटी है, ये खालिस नहीं है। खालिस मीन्स प्योर, क्योंकि वो जो सुप्रीम सोल है वो तो खालिस है ना, वो तो प्योर है। तो वहां तक मैं इसलिए पहुंच नहीं पा रही क्योंकि मुझ में कुछ इम्प्योरिटीज हैं। अब उस इम्प्योरिटी को मुझे हटाना है अपने अंदर से, पर वो इम्प्योरिटी, वो अंधेरा जो मेरे अंदर है उसको हटाना है। तो वो कैसे हटेगा? तो कोई ना कोई लाइट जलेगी तभी तो वो अंधेरा हटेगा। अब वो लाइट कैसे जलेगी? अब वो लाइट, मुझे भी नहीं पता कि मेरा अंधेरा क्या है, लाइट क्या है, पर जैसे जैसे हम किसी जर्नी में आगे बढ़ते चले जाते हैं, हमें अपने अंधेरे दिखते हैं कि हाँ, मेरे में ये चीज की कुछ गड़बड़ है, या मेरे को इस चीज के अंदर ये एक्वायर करना है। और इस एक्वायरमेंट को करने के लिए, इस काम को करने के लिए, इस प्रैक्टिस को करने के लिए आप बाहरी दुनिया में डूइंग डोमेन में कुछ कर रहे होगे, कुछ कर्म कर रहे होगे, कुछ एक्शंस कर रहे होगे आप। वो तभी तो, जो बाहरी दुनिया में आप डूइंग कर रहे होगे, तभी तो आपका बीइंग अंदर से प्योर हो रहा होता है। जैसे कि जब हम सेवा के अंदर डिटेल क्लासेस देते हैं गुरुद्वारे में, तो हम क्या बोल रहे होते हैं उस समय कि आप बर्तन धो रहे हो, तो आप बाहर बर्तन धो रहे हो पर अंदर से अपनी मैल मिट्टी हटा रहे हो। आप बाहर से रोटी बांट रहे हो पर आप अंदर से ये कर रहे हो। आप यहाँ पे जोड़े की सेवा कर रहे हो पर अंदर से ये हो रहा था। जैसे हमारे को जो अमृत धारण में सिखाया जाता है कि एवरी डूइंग डोमेन हैज एन इम्पैक्ट ऑन द बीइंग, एंड एवरी बीइंग इज क्रिएटिंग अ डूइंग डोमेन। तो ये दोनों आपस में चल रहे हैं। तो कई बार हम इन दोनों को मैच कर देते हैं आपस के अंदर, ताकि दोनों का पर्पस फास्ट फास्ट हो जाए। तो आप जो ये अपने पर्पस ऑफ लाइफ, जिसको आप समझो ये मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है, ये आपके बीइंग और डूइंग का मिक्स फॉर्मेट ही तो होगा ना। तो जी जैसे जैसे मैं वो करती जाऊंगी, वैसे वैसे मेरा बीइंग निखरता चला जाएगा। मैं बाहर में जो भी कर रही होंगी, तो जैसे मैं लोगों को ब्यूटीफाई कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल बाहर से मेकअप कर रही हूँ, पर मेरे अंदर से भी तो कुछ ना कुछ निखर रहा होगा ना, तभी तो मैं उस फील्ड की ऊंचाई तक पहुंची होंगी। तभी तो, अदरवाइज अगर मैं बाहर से मेकअप कर रही हूँ पर मैं अंदर से नेगेटिव हूँ, तो मैं कभी उस पैसों की, फेम की, नेम की, पॉपुलैरिटी की ऊंचाई तक पहुंच ही नहीं सकती हूँ। क्योंकि वो ऊंचाई पे पहुंचना एक रिवॉर्ड होता है जो हमारे को मिल रहा होता है यूनिवर्स से। तो वो रिवॉर्ड मिल रहा है क्योंकि मेरे दोनों ठीक चल रहे हैं, आपस में बैलेंस चल रहे हैं। कई लोग काम बहुत अच्छा करते हैं पर अंदर से चिंता में, घबराहट में, नेगेटिविटी में, नाशुक्रेपन में रह रहे होते हैं। तो ये लोग कभी भी उस सेटिस्फेक्शन या उस फेम की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते जिसको आप कहते हो हीरोशिप। नाउ वंस यू अंडरस्टैंड, पर्पस ऑफ लाइफ आपके साथ साथ चल रहा है, आपके साथ साथ। क्योंकि अभी मेरे को एक, जैसे मुझे दिखा कि मेरे को ये वाली चीज में इम्प्योरिटी था, मैंने उसके अंदर जो भी काम किया होगा, आई गॉट सम लाइट इनटू इट। बट उसके बाद जब मैंने एक लाइट को एक्वायर किया, तो मुझे अपना बहुत बड़ा अंधेरा दिखा उसके बाद, कि मेरे अंदर तो ये अंदरूनी दुनिया में भी बहुत अंदर से कालापन है या झूठ है या जो भी दिखा। देन आई मूव टू अनदर रेल्म टू प्योरीफाई माई सेल्फ। तो ये जब आप इस जर्नी में चलोगे ना, आपका इकलौता काम ये है अपने आप को रोशनी में बनाए रखना। आप रोशनी में होगे तो ही आपको अपने अंधेरे दिखेंगे, और आपके अंधेरों को रोशन करना ही आपका पर्पस ऑफ लाइफ होता है। और उसको करने के लिए आप बाहरी दुनिया में कुछ ना कुछ काम कर रहे होगे, मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे होगे, पर आप कुछ कर रहे होगे। एंड वो करना होना करते 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 स्लोली स्लोली आपके सारे अंधेरे आपको दिखते चले जाते हैं, आप उनके ऊपर काम करते चले जाते हो, एंड वन डे यू रीच योर सुप्रीम लाइट। ओके, और वो लाइट तक पहुंचने के लिए बॉडी तो चाहिए ही चाहिए ना आपको। कई बार जब हम ध्यान लगा रहे होते हैं तो बॉडी चाहिए। हम बहुत सारे, अभी बॉडी के तो बहुत जरूरी है बॉडी का स्वस्थ रहना। और आपकी अगर शेप मतलब जो आपको खुशी दे रही है, जो भी खुशी आपको मिल रही है उस शेप में उस बॉडी का बना रहना। तो अभी आई होप आई होप यू गॉट अ लिटिल हिंट फॉर योर आंसर। हैव यू गॉट अ Yes, लिटिल हिंट? इज इट? I got the hint, but I will be working more on this. हाँ, तो मतलब अभी के लिए, क्योंकि अभी उसने सिर्फ बॉडी की बात करी है, अगले जो 2 चैप्टर्स आएंगे ना, हाँ जी। जो आगे आने, वो लाइफ के ऊपर। अभी जैसे आपने लाइफ को बोला, तो अगला चैप्टर ही है पावर एंड लाइफ। तो पूरा का पूरा इसी लाइन के ऊपर बेस्ड चैप्टर आ रहा है अगला। तो वंस भी हम जब पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ेंगे ना, तो ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी लाइन में। ठीक इज है, इट थैंक क्लियर यू, फॉर नाउ? थैंक यू। Thank you very much for your question and all the best for your clarity. Thank you. Okay, so are we done, Sarita ji? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you very much everyone for your participation and thank you very much for really loving. जैसे कहते हैं ना, अगर हमारा भगवान अंदर बैठा है तो शरीर एक मंदिर के समान होता है।
हाँ, शरीर मंदिर होता है। मतलब आई एम रियली नोटिस्ड एंड रियली इसको साफ सुथरा रखना, इसको नॉट ओनली एक्सटर्नली बट इंटरनली भी इसको यस एनर्जी के साथ रखना, ताकि ये सच में एक मंदिर, भगवान जो अंदर बैठा है खुश रहे हमेशा। तो अपनी बॉडी से पूछो व्हाट डू यू लव, व्हाट डू यू वांट, व्हाट इज योर आइडियल स्टेट, उससे पूछो बॉडी से, ठीक है। तो शीशे के सामने बैठ जाओ कॉपी पेन लेकर एंड कीप आस्किंग, so that it not because of any comparison or any competition, but you really love it, you really like it about your body to be like that way. So thank you very much for creating that domain for yourself, that practice for yourself. Love you, have a great time, have a great weekend, love you. अरे अरे छोटे छोटे, अच्छा हाँ, हम कल से तो है नहीं, तो रिपीट पे चलेगा। सरिता जी, हम लोग जा रहे हैं अपनी एनर्जीज की दुनिया में, बहुत मजा आने वाला है। सो वी आर गोइंग फॉर really harnessing and exploring the world of positive energies, just feminine energy। शरीर क्या है? ये प्रकृति का बनाया हुआ एक पुंज है। तो शरीर क्या है? ये feminine energies, ये प्रकृति माया का रूप, माया का दिया हुआ गिफ्ट है। तो शिवा कौन है? आत्मा। शक्ति कौन है? ये शरीर शक्ति का ही रूप है। ओके, तो वी आर एंटरिंग अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डोमेन ऑफ शक्ति विच इज देयर। अब शक्ति किसे कहते हैं वो हम बात करेंगे वहीं पे जाकर। And we will be doing a lot of gratitude, continue gratitude, different group of Shakti. So we will be busy in that on a full moon get together. So we will be seeing you after 27th, I think, है ना? 4 days of recording में। हाँ, तो आप 4 days आप पूछ लो, अगर आपने उसका करना है डिटेलिंग सीक्रेट मूवी का तो वो कर सकते हो, नहीं तो इसी की रिकॉर्डिंग होगी। ठीक है जी। सो तब तक बस अपने लिए एक्सप्लोर करते रहो व्हाट यू वांट फॉर योर बॉडी। सो थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, सी यू सून अगेन।